Namaskaram. So we are starting income tax new batch, and in this batch we are going to discuss income tax which is relevant for assessment year 24-25. That is next assessment year. Many of professionals are working on assessment year 23-24. So we are not covering the syllabus or the act which is applicable for AY 23-24. We are actually covering act which will be relevant in AY 24-25. So that's the first thing you should know. Now, when we are starting this particular sessions or these lectures, some of you might ask, this batch is for what type of students or what type of people? So this batch is not only for CA student, even a CMA students can take the benefit, even CA student can take benefit, both at inter and final level. So all the professional courses which are having income tax law as a syllabus, they can take the benefit out of it. There are other fields of commerce where income tax is also a part of the syllabus. So BCom student, MCom student, they can also take the benefit. But this whole series is not actually for academic purpose. We are actually recording this particular series for the practical purpose. So the purpose here is to train our in-house staff so that they can develop better understanding of Income Tax Act, which will help them to execute the assignment, which are tax return filings, TDS compliances, advanced tax compliances, tax audits in appropriate manner. And because of that, I have to speak in Hindi plus English language, because my staff, they are more comfortable in Hindi. And many of you are, whenever we upload any video on our YouTube channel, many of you comment, so please record the video in English. So I'll try to speak as much as English as possible, but the purpose here is not to focus on the language. The purpose here is to focus on the concepts. And that's the reason I'm going to conduct this particular whole series of income tax law in the mixed language, Hindi and English. हिंदी इसलिए क्योंकि वो समझने के लिए आसान हो जाता है, समझाने के लिए आसान हो जाता है. The law is already written in the English language. So if I convert English into English, some of the students who are very new to the income tax law may not understand what exactly we are trying to decode. And that's the reason we have to take help of Hindi language, comfortable language, which will help them to understand it in a better manner. तो लॉ में आप लोगों को प्रैक्टिकल लैंग्वेज में नहीं पढ़ाऊंगा, एकदम थियोरेटिकल लैंग्वेज में नहीं पढ़ाऊंगा. ज्यादा से ज्यादा फोकस मेरा होगा कि आपको प्रैक्टिकल का जो नॉलेज होना चाहिए वो होना चाहिए. तो सर हम AY 24-25 का लॉ पढ़ने वाले हैं. AY 24-25 का लॉ, दैट मीन्स PY 23-24, दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो अभी चालू है, इसमें जो भी लॉ एप्लीकेबल होगा अगले साल, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. दिस लॉ इज बेस्ड ऑन बजट 2023 विच इज ऑलरेडी अनाउंस्ड इन द पार्लियामेंट. तो बजट अनाउंस को हम लोग बोलते हैं फाइनेंस एक्ट 2023 नाउ, बिकॉज बजट जब पार्लियामेंट पास करती है, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट जब पास करती है, तो इट बिकम्स फाइनेंस एक्ट. तो पहले जब बजट होता है, जब बजट अनाउंस करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, तो हम उसको फाइनेंस बिल बोलते हैं. फाइनेंस बिल जब पास होता है तो फाइनेंस एक्ट बोला जाता है. तो वी विल बी स्टडिंग फाइनेंस एक्ट 2023 विच इज द लेटेस्ट लॉ अवेलेबल विद अस. ओके, नाउ सर हम क्या करने वाले हैं फिर, हम अलग अलग नोट्स में से इस चीजों को कवर करेंगे. बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो हम CA इंटर मॉड्यूल में से कवर करेंगे. जब CA में इंटर का मॉड्यूल आएगा तब हम उसमें से भी कुछ चीजें कवर करेंगे. फाइनल के जब अपडेटेड बुक्स आएंगे तब हम उसमें से भी कवर अप करेंगे. एंड बिकॉज स्टूडेंट शुड नॉट बी डांसिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, तो मेरी जो बैक एंड टीम है, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड क्रिएटिंग द अपडेटेड नोट्स ऑफ इनकम टैक्स. जैसे ही क्रिएट हो जाएगा, आप हमें व्हाट्सएप पे या हमारे साथ टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे कनेक्ट रहिए. आप अपना ईमेल आईडी और अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करेंगे तो मेरी बैकएंड टीम जो है, जो रेलेवेंट नोट्स हमारे बनते जाएंगे, आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे. Everything is free. We are not charging anything for the notes. We are not charging anything for the lectures. We are just asking your commitment कि आप लोग देखो,
इससे एडवांटेज लो, और आपके जो भी बेनिफिट्स, आपके बेनिफिट के लिए जो भी आपको क्वेश्चंस आते हैं विच आर जेन्युइन वन, ठीक है ना, पूछने के लिए कुछ भी मत पूछिए, बट इफ यू आर genuinely having certain questions about income tax law and you want us to record a video, we will definitely take care of that. क्योंकि जितने भी मेरे पास स्टूडेंट्स हैं जो भी अभी आज आर्टिकलशिप में काम कर रहे हैं और अलग अलग ऑफिस में काम कर रहे हैं, इवन इफ दे आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, keeping themselves updated with income tax law is our responsibility. That's what we are doing this. तो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो आपका भी उतना ही हम सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों को जो भी नॉलेज चाहिए वो सारा नॉलेज हम देने के लिए रेडी है। खाली इसको कमिटमेंट की तरह देखिए, डोंट लुक एट इट दिस एज अ रैंडम वीडियो ऑन यूट्यूब, कोई इंटरटेनमेंट का वीडियो है नहीं, इट इज एन एजुकेशनल कंटेंट। ऑब्वियसली हम जब लाइव बैच में बात करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, हम सामने सामने रहते हैं, तो हम बहुत सारे एंटरटेनमेंट भी करते हैं, बट बिकॉज दिस इज अ रिकॉर्डेड लाइन, वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट द एंटरटेनमेंट पार्ट एंड वी हैव टू फोकस मोर ऑन एजुकेशन पार्ट। और एजुकेशन की जब मैं बात करता हूं तो प्लीज डू नॉट अगेन अज्यूम दिस एज अ completely syllabus oriented thing. Yeah, syllabus I am going to cover, because without syllabus how could I teach you practical? तो प्रैक्टिकल के लिए थ्योरी का बेस होना चाहिए, और थ्योरी का बेस जो है हमारे मॉड्यूल्स में पहले से दिया हुआ है। तो आई एम गोइंग टू कवर 100% ऑफ द सिलेबस दैट इज देयर डेफिनेटली, बट नॉट ओनली सिलेबस, वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप एट द सिलेबस, वी आर आल्सो गोइंग टू कंप्लीट द प्रैक्टिकल सीरीज ऑफ द इनकम टैक्स लॉ। तो होता कैसे है कि जब आप इनकम फ्रॉम सैलरी करके चैप्टर पढ़ते हो, तो इन सिलेबस यू जस्ट स्टडी कि इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या क्या होता है। तो सैलरी होगा, वेजेस होगा, कमीशन होगा, अलाउंसेस होंगे, टैक्सेबल अलाउंसेस, नॉन टैक्सेबल अलाउंसेस, परक्यूजिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट, ग्रेचुइटी, पेंशन, ये सब आप पढ़ते हो, लेकिन उसका एक्चुअली इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्टिंग कैसे करने का, दैट इज नॉट taught, or that cannot be covered in the syllabus oriented module. That's the reason what we are going to do. एक बार आपका सैलरी का चैप्टर हो जाता है तो उसका जो रिलेवेंट ITR होता है ITR 1। तो ITR 1 कैसे भरा जाता है प्रैक्टिकली, उसकी भी हम सीरीज रिकॉर्ड करने वाले। तो दिस इज नॉट ओनली प्रैक्टिकल, नो 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 नो, जिनको लगता है कि खाली प्रैक्टिकल सिखाएंगे, वो भी नहीं है। दिस इज नॉट ओनली थ्योरेटिकल, नहीं वो भी नहीं है। This is theory plus practical, that means it is going to be a complete knowledge of income tax law. तो जितना भी इसके लिए टाइम लगे, 3 महीने लग सकते हैं, 4 महीने लग सकते हैं, बट वी आर गोइंग टू डू इट फॉर द श्योर। हमने शुरू किया तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। ओके हाँ, बीच में अगर टैक्स ऑडिट चालू है, काम है, तो वी मे नॉट बी एबल टू बी कंसिस्टेंट विथ अपलोडिंग ऑफ द लेक्चर्स, बट हम ट्राई कर रहे हैं कि जितना हमारा मैक्सिमम कमिटमेंट है हम वो कवर अप करें। नॉट ओनली टैक्सेशन, वी हैव आल्सो गिवन अ कमिटमेंट to complete the company law compliances which will be taken by CS Aarti Vishwakarma and other back-end team like Saili is there and other people are there who will be doing that. GST का भी हम फाइलिंग का पूरा प्रोसेस हम कवर करने वाले हैं। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर इन लाइन टू हेल्प यू गाइज टू अंडरस्टैंड द होल CA प्रैक्टिस, ठीक है ना, कि CA के प्रैक्टिस में क्या क्या होता है। और जब आप CA प्रैक्टिस समझ लेते हो तो CS प्रैक्टिस, CMA प्रैक्टिस, टैक्स कंसल्टेंसी प्रैक्टिस, हमारे महाराष्ट्र में GDCA करके होते हैं, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। तो हम हर एक चीज को कवर करने का ट्राई करने वाले, बिकॉज आने वाले 18 मंथ का हमारा टारगेट है। आने वाले 18 मंथ में वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर चैनल, यूट्यूब चैनल, या हमारे जो भी एजुकेशनल जो टेक की एजुकेशनल डिवीजन है, उस पे मैक्सिमम ट्रेनिंग ओरिएंटेड वीडियो सारे अपलोड हो जाए। दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टेड टू डू। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइस, दिस इज अ इंट्रोडक्शन सेशन। तो इंट्रोडक्शन सेशन में आप लोगों से मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, आप लोगों से मैं एक चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप सबके पास एक नोटबुक हो, ठीक है ना। यू नीड टू हैव अ नोटबुक। बाकी हमारे नोट्स आप लोगों तक हम PDF पहुंचाने का पूरा ट्राई करेंगे, बट यू मस्ट हैव अ नोटबुक। अब नोटबुक में भी 2 टाइप की नोटबुक आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। एक होगा जो रफ वर्किंग के लिए हम बताएंगे, तो मैं आपको बोलूंगा कि ये सॉल्व करके देखो, तो आपको वीडियो पॉज करना है और वो क्वेश्चन आपको पहले अपने एंड पे सॉल्व करना है, मेक अ मिस्टेक। और जब गलती करोगे तो ही तो सीखोगे। तो क्या करना है आपको, जब मैं बोलूंगा कि लेटेस्ट सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 4, तो आप लोगों को क्या करना है कि मुझको पॉज करना है और आपको वो क्वेश्चन अपने एंड पे पहले रीड करके सॉल्व करने का ट्राई करना है। एक बार आप अपने एंड पे सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ रुक रहे हो, कौन सी लाइन है जो आपको कंफ्यूज कर रही है, कौन सा एरिया है जो, नहीं तो फिर आप क्या करोगे, मेरा ही क्वेश्चन देखोगे, मेरा ही आंसर देखोगे, तो आपको तो सब सही लगेगा। योर ब्रेन विल नॉट चैलेंज, और देन ब्रेन चैलेंज ही नहीं होगा तो ब्रेन अपग्रेड नहीं होगा, ब्रेन केपेबल नहीं होगा। तो पहले आपको क्या करना है, रफ नोटबुक में अपने क्वेश्चन सॉल्व करने, यहाँ पे आप गलतियां करो, फिर जब आप फेल करोगे उसको ये सिस्टमैटिक तरीके से हम सॉल्व करेंगे, या सॉल्व करके आपको ऑलरेडी प्रिंटेड बुक पहुंचाया होगा, देयर विल बी अ सिस्टमैटिक आंसर टू इट। तो आई एक्सपेक्ट यू पीपल टू मेंटेन अ नोटबुक। नोटबुक मेंटेन करने के टाइम पे मल्टी कलर यूज कीजिए, तो ब्लैक, ब्लू एंड
रेड, ठीक है ना। यूजुअली ये 3 कलर हम यूज करते हैं, तो ब्लैक, ब्लू एंड रेड का कॉम्बिनेशन आप भी यूज कीजिए। अनदर थिंग, आप लोग पढ़ने बैठे हो तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज होगा दैट हैज टू बी स्टूडेंट माइंड, मतलब आप सीए बन भी गए रहोगे, ठीक है ना, या आप 15 साल से प्रैक्टिस में हो, क्योंकि अलग अलग लोग हमारे चैनल पे कनेक्टेड है, सम पीपल आर मोर एक्सपीरियंस देन मी, स्टिल यू नीड टू कैरी अ मेंटालिटी ऑफ अ स्टूडेंट। अगर आपने स्टूडेंट मेंटालिटी लेकर यहाँ पर नहीं आओगे तो होगा क्या, अगर आप अज्यूम करोगे मुझको तो सब कुछ पता ही है, तो यू देर इज अ रेस्ट्रिक्टेड स्कोप ऑफ लर्निंग देम। जब आपको ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ पता है तो फिर आप सीखने ही क्यों आए हो, ठीक है ना। तो अगर आप सीखने आए हो तो दैट मीन्स समवेयर इन योर सबकॉन्शियस माइंड यू थिंक कि आपको अभी तक सब कुछ नहीं पता। साहब मैं 2008 से लॉ पढ़ा रहा हूं, इनकम टैक्स एक्ट आई एम टीचिंग सिंस 2008, 2023 आ गया, आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस टू से आई नो एवरीथिंग अबाउट इनकम टैक्स लॉ। तो आई अज्यूम कि आप लोगों के माइंड में भी वही होना चाहिए। तो व्हेन आई एम सेइंग आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ, तो being a actual student of income tax law, you should also the carry a mentality of learning। एक attitude होता है, जो learning attitude होता है, वो आपको carry करना है, ठीक है ना। तो प्लीज कैरी अ लर्निंग एटीट्यूड। हो सकता है कि मैं कुछ गलत बोलूं, हो सकता है कि मैंने जो एक्सप्लेन किया उसका एग्जैक्ट लॉजिक ना बैठे, लेकिन क्योंकि आप लर्निंग मेंटालिटी लेकर आए हो, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू पुट सम इनपुट्स इनटू इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द वे यू शुड अंडरस्टैंड इट। मैं आपको उस वे में पढ़ाना चाहता हूं जिस वे में मुझे लगा कि हाँ यार, इस वे में अगर मैं पढ़ाऊंगा, इस स्टोरी के साथ अगर मैं पढ़ाऊंगा, इस चार्ट के साथ अगर मैं पढ़ाऊंगा, तो ये स्टूडेंट के लिए बेहतरीन है, ये स्टूडेंट के लिए ईजी हो जाएगा जो भी ये सीखना चाहता है। आई एम ऑलवेज लर्निंग फ्रॉम माई स्टूडेंट। तो अगर आपको लगता है कि मुझे अगर कहीं पे इंप्रूव करना है इन एनी एरिया, तो आप प्लीज वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये जो एरिया इसको आप थोड़ा और बेहतरीन बना सकते थे, आप थोड़ा ऐसे और बता सकते थे, या यहाँ पे आपने थोड़ा फास्ट किया, आप थोड़ा स्लो कीजिए, या यहाँ पे आपने थोड़ा स्लो किया, यहाँ पे आप थोड़ा फास्ट कीजिए। योर कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। ऑब्वियसली आप अप्रिशिएट करोगे तो अच्छा ही लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं थैंक यू फॉर मेकिंग द वीडियो एंड ऑल, क्योंकि ये इन हाउस ट्रेनिंग थी जो मेरे लिमिटेड स्टाफ के लिए हमने करनी थी। फिर हमने सोचा कि यार हम लोग इतने सेल्फिश क्यों बन रहे हैं कि हम ही सीखे, तो हमने सोचा कि नहीं यार इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको पता नहीं यहाँ पे कितनी मेहनत लग रही है, अभी पूरा का पूरा स्टूडियो चालू करके रखा है हमने, तो थोड़ा अप्रिसिएशन भी आप लोगों से हमें मिलता है। तो मेरी जो बैकएंड टीम, जो वीडियो अपलोड करने वाली टीम है, उनको थोड़ा अच्छा लगता है कि सर सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, सर व्यूज आवर्स बढ़ रहे हैं, सर ऐसा हो रहा है, तो दे फील दैट यू नो दैट इज द फ्यूल फॉर अस कि हम लोग ग्रो हो रहे हैं। ऑब्वियसली ग्रो होने के अलग अलग रीजन है। जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो वी अर्न सम मनी आउट ऑफ इट, पर मैं आपको बता दूं हम साल में 10 से 12 हजार यूट्यूब से कमा रहे हैं आज के तारीख में। जितना टाइम एंड एफर्ट्स हम डाल रहे हैं, मेरी 10 लोगों की तो टीम है साहब वीडियो अपलोड करने के लिए, तो उनकी सैलरी भी, उनके 2 बच्चों की भी सैलरी कवर नहीं हो रही है उसमें से। तो इट इज नॉट ओनली फॉर द फ्रॉम द मॉनेटरी पर्सपेक्टिव, देयर इज यू नो सम सोशल पर्सपेक्टिव आल्सो कि यार हमारे, जब हमारे ऑफिस के 20 बच्चों को अगर इनकम टैक्स लॉ अच्छे से नहीं आता, इसका ये मतलब है कि दुनिया में बहुत सारी सीए फर्म्स होंगी, बहुत सारी टैक्स कंसल्टेंसी फर्म्स होंगी जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट काम करते रहेंगे, लेकिन उनको भी क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि वो काम नहीं कर सकते, काम तो सब कर सकते हैं, कर ही रहे हैं। हमारा पर्पज आपको काम वर्किंग नॉलेज देना नहीं है, हमारा नॉलेज है आपको इनकम टैक्स में बाप बनाना, एक्सपर्ट बनाना, ठीक है ना, कि आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए, आपको सेक्शन 89 का रिलीफ भी पता होना चाहिए, आपको डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपका अगर कोई एससीसी है जो 3 देशों में काम करता है तो उसका असेसमेंट कैसे होगा। तो वी हैव स्टार्टेड दिस विद अ लार्जर पर्पस कि भैया सबको सब पता होना चाहिए, एंड दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो प्लीज आप लोगों से थोड़ा एक्सपेक्ट हम जरूर करते हैं कि आप लोग चीजों को अप्रिशिएट कीजिए। ओके, तो लर्निंग मेंटालिटी एंड हैव द ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द पीपल, नॉट ओनली मी, पीपल हु आर वर्किंग अराउंड मी टू प्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ कंटेंट। ओके, अगली चीज जो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं वो है कि आप एक कंट्रोल शीट बनाएंगे, ठीक है ना। तो देयर शुड बी कंट्रोल शीट। अब कंट्रोल शीट कैसे बनती है, वैसे तो कैसे भी बना सकते हो, हम एक्सेल में बना के दिखाते हैं आपको, आप नोटबुक पे भी बना सकते हो। एक्सेल ओपन होता है यहाँ पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिलेबस का कंट्रोल शीट, ठीक है ना। तो इसको हम डालते हैं इनकम टैक्स करके कि एक इंसान को पढ़ना क्या क्या होता है, तो उसमें से हम लोग स्टार्ट करें। चलो पहले आपको हम इनकम टैक्स का नॉलेज देंगे साहब। ओके, वैसे तो हम अलग अलग आपको नॉलेज देने वाले, बिजनेस का नॉलेज अलग होगा, अकाउंटेंसी का अलग होगा, टैक्सेशन का अलग होगा, जीएसटी का अलग होगा। तो यू कैन कीप एडिंग द प्लेलिस्ट हियर ना, आप जीएसटी यहाँ पे ऐड कर सकते हो,
आप कंपनी लॉ उसके आगे ऐड कर सकते हो। तो दिस विल बी अ कंट्रोल शीट। एक्सेल में बना सकते हो तो एक्सेल में बना लो, एक्सेल में नहीं बना सकते तो अलग अलग नोटबुक लेके बना लो। सर कंट्रोल शीट का होना बहुत जरूरी है लाइफ में। क्यों जरूरी है लाइफ में? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वेयर यू आर एक्चुअली स्टैंडिंग। एक बार पढ़ के अगर साहब इनकम टैक्स जैसा लॉ अगर आपको समझ में आता ना, तो मुझे इतना एफर्ट डालने की जरूरत ही नहीं थी। आई नो कि एक बार पढ़ के इनकम टैक्स लॉ तो पल्ले नहीं पढ़ने वाला। अच्छा लगता है सुनने के लिए, लेकिन एक्चुअली समझ में नहीं आता। मुझे खुद को इनकम टैक्स लॉ अच्छे से 2015 के बाद समझना चालू हुआ। 2014 आई कंप्लीटेड माय सीए साहब। ओके, so I completed my CA all the levels. I was teaching since 2008, but actually I started understanding it from the 2015 onwards. लॉजिक्स क्लियर हो गए कि अच्छा इस प्रोविजन का ये लॉजिक है, अच्छा इस प्रोविजन का ये लॉजिक हो सकता है, ओके ये प्रोविजन और ये प्रोविजन दोनों कनेक्टेड है, इनको ऐसे पढ़ाना चाहिए। तो दिस इज हाउ आई एम लर्निंग द इनकम टैक्स लॉ। तो आप लोग भी वैसे ही कीजिए। तो यहाँ पे होगा सीरियल नंबर, ठीक है। सेकेंड होगा आपका टॉपिक, कि आपको भैया कौन सा टॉपिक आपने कवर किया है। तीसरा है कि क्या आपने इसका क्लासरूम अटेंड किया है, ठीक है, मतलब क्या आपने इसकी कोचिंग की है, जो वीडियो देखने थे वो देखे, वीडियो हो फिजिकल ट्रेनिंग हो जैसा भी हो, आपने पढ़ लिया है क्या, ये थर्ड आइटम है। फोर्थ आइटम है क्या आपने इसके नोट्स बनाए, बिकॉज खुद के नोट्स बनना बहुत जरूरी है। भले आप 50 प्रिंटेड बुक ले लो, ठीक है ना, 50 ऑथर की बुक ले लो, अल्टीमेटली यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग योर ओन नोट्स, तभी आप लोगों को ये होगा। कोई ना कोई आपको मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा। व्हेन आई से मॉड्यूल, मॉड्यूल मतलब आप अगर सीए में स्टूडेंट हो तो आपकी इंस्टीट्यूट ने आपको प्रिंट करके दिया हुआ मॉड्यूल है। आप बीकॉम स्टूडेंट वगैरह हो तो आपके ऑथर ने, कोई ना कोई आपकी यूनिवर्सिटी ने आप लोगों के लिए, दे मस्ट हैव क्रिएटेड सम काइंड ऑफ बुक्स, राइट। तो अगर आप प्रोफेशनल्स हो तो रेडी रेकनर है, या कोई ऑथर की किताब ले लो, कोई भी पब्लिकेशन की बुक ले लो। तो यू मस्ट हैव सम बुक, इनकम टैक्स का लेटेस्ट बुक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेटेस्ट बुक आपके पास होना चाहिए, विच विल हैव ओशियन काइंड ऑफ कंटेंट, कंटेंट बहुत ज्यादा होना चाहिए उसमें। तो होगा क्या, मैं आपको क्या बताने का ट्राई कर रहा हूं। तो भैया वी विल बी स्टडिंग पहला टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट, एकदम बेसिक इनकम टैक्स का, एकदम बेसिक क्या होता है। तो वी विल बी स्टडिंग बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिया, बेसिक्स मतलब असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है। आई नो यू आर एक्सपर्ट ऑफ दैट, बट बिकॉज आई एम कवरिंग दिस पर्टिकुलर सिलेबस फॉर द ऑल कम्युनिटी, जिनको पता नहीं है उनको भी पता होना चाहिए, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसको भी पता होना चाहिए, जो 4 साल से इनकम टैक्स पढ़ रहा है उसको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए। तो वी आर ट्राइंग टू कवर एवरीथिंग। बेसिक कॉन्सेप्ट में 10-12 घंटे लगेंगे, हो जाने दो 10-12 घंटे, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा तो नॉलेज आ ही जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जब मैंने पढ़ा लिया, या आपने किसी और से भी पढ़ लिया, मेरे से भी बेहतरीन फैकल्टी इनकम टैक्स की अवेलेबल है आज डिजिटल पे, मेरे जो गुरु है वो लोग भी अवेलेबल है। तो आई एम नॉट सेइंग आई एम द ओनली वन, देयर आर मल्टीपल ऑप्शन। आप किससे पढ़ते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हेनेवर आई स्टार्ट लेक्चर्स आई ऑलवेज से सोर्स ऑफ नॉलेज इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द नॉलेज इटसेल्फ, ठीक है ना। तो आपको नॉलेज इंपॉर्टेंट है, आपका सोर्स ऑफ नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने कहां से वो सीखा है या किससे सीखा है वो मैटर नहीं करता। तो आप लोगों को भैया एक तो यहाँ पे डेट लिखने हैं, ठीक है ना, ये क्लासरूम, यहाँ पे सारे डेट्स आएंगे। तो आज की डेट क्या है, आज की डेट है 13 सितंबर 2023। आप डेट लिखोगे साहब यहाँ पे कि इस दिन पे आपका पढ़ के हुआ है। आप लिखोगे कब, जब आपका पढ़ के होगा। आपका मतलब समझ रहा है, मैंने कब पढ़ाया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों का वो कॉन्सेप्ट कब क्लियर हो गया कि भैया हाँ ये कॉन्सेप्ट जो है मेरा एकदम क्लियर है। नाउ आई नो व्हाट इज प्रीवियस ईयर, व्हाट इज असेसमेंट ईयर, हु इज द पर्सन, हु इज द असेसी, सब मुझे पता है साहब, ठीक है ना। तो आपको पहले तो क्लासरूम, जब आपका मतलब आपको जब नॉलेज आ जाएगा, आपने किसी से सीखा है, तो वो तारीख यहाँ पे लिखनी है। क्या आपके नोट्स बन गए, सीखते सीखते आप नोट्स बनाओगे, ठीक है ना। तो सीखते सीखते नोट्स बनाओगे, जब नोट्स बन जाएंगे तो आप नोट्स का डेट वहां पे डाल देना कि हाँ भैया आप मेरे नोट्स कंप्लीट हो गए। फिर आपका मॉड्यूल होगा, हाँ कोई ना कोई बुक में आपको किताब पढ़ने बोल रहा हूँ, इनकम टैक्स का कोई भी बुक आप परचेज कीजिए, डजंट मैटर कौन सा बुक है, खाली लेटेस्ट होना चाहिए, बस वही इंपॉर्टेंट है। आप एक लेटेस्ट बुक उठा लीजिए एंड देन रीड आउट एवरीथिंग। सर मेरे पास ना कोई नॉलेज नहीं है, मैं कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं हूं, तो मैं क्या पढ़ूं। तो आप सीए इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल आप डाउनलोड कीजिए, फ्री में अवेलेबल है। कैसे डाउनलोड करते हैं वो भी मैं आपको 2 मिनट में दिखा देता हूं कि सीए इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल कहां से डाउनलोड होता है। आप आईसीआई करके अगर आप पोर्टल पे जाते हो, वैसे तो आप गूगल पे भी डाल सकते हो सीए इंटर स्टडी मटेरियल, लेकिन मैं आपको प्रॉपर स्टेप बताता हूँ। ये सीए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, वेयर यू कैन क्लिक ऑन स्टूडेंट्स। आप स्टूडेंट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आता है बोर्ड ऑफ नॉलेज पोर्टल, बीओएस नॉलेज पोर्टल, बोर्ड ऑफ स्टडीज हम बोलते हैं उसको, तो इट्स बीओएस नॉलेज पोर्टल। आप अगर यहाँ पे आके क्लिक करोगे तो आपको बीओएस नॉलेज पोर्टल पे ये वेबसाइट लेकर जाएगा। ओके,
नॉलेज पोर्टल पे आप जाओगे तो ये हमारा यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट है, दुनिया भर का कंटेंट है, यू कैन एक्सप्लोर, मतलब जिंदगी खत्म हो जाएगी, कंटेंट खत्म नहीं होगा। उसमें आपको जाना है सिलेबस में, सिलेबस में भी आप देख सकते हो स्टडी मटेरियल में न्यू है, ओल्ड है। ऑब्वियसली हम न्यू की बात करें, लेटेस्ट की बात करें, वहां पे भी 3 कोर्सेज के बुक रखे उन्होंने, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। आपको जो भी लेवल का डाउनलोड करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टैक्सेशन शुरू किया है, तो या वी आर हैविंग यहाँ पे सेक्शन है इनकम टैक्स। यहाँ पे आपके 2 मॉड्यूल आपको मिलेंगे, दिस इज व्हाट वी कॉल एज मॉड्यूल। तो आप यहाँ से मॉड्यूल ओपन करके आराम से बेसिक कॉन्सेप्ट का जो चैप्टर है वो आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो। प्रिंट लेके रखना चाहते हो तो प्रिंट लेके रखो, वॉट एवर इज योर कंफर्ट यू डू इट। दिस इज हाउ आई टॉट यू हाउ टू डाउनलोड द बुक्स, लेटेस्ट बुक। सीए इंस्टीट्यूट का ही क्यों सर, कोई अलग से प्यार है क्या? जी नहीं, मैं मेंबर हूं इंस्टीट्यूट का, तो मैं तो इंस्टीट्यूट की बात करूंगा। दूसरा, दिस इज द ओनली इंस्टीट्यूट जो अपडेट करती है बुक्स को एट रियल टाइम बेसिस, मतलब जल्दी से जल्दी मार्केट में जो पहले बुक लॉन्च होते हैं वो इनके होते हैं। तो नो मैटर आप कौन से इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हो या कौन से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, अगर आपको लेटेस्ट वाला इनकम टैक्स लॉ पढ़ना है तो आईसीए इज द सोर्स, ठीक है ना। तो दैट्स वन थिंग दैट यू पीपल शुड अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट कि इंस्टीट्यूट, अच्छा इंस्टीट्यूट मतलब बहुत बड़ी एक कमिटी बैठी है जो ये बुक बनाती है। तो एक पर्सन जब बुक बनाता है तो गलत हो सकता है, देयर इज अ होल कमिटी जो ये बुक बनाती है, तो दे आर ऑल्सो पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स टू क्रिएट द कंटेंट, और कंटेंट बना बनाया मिला है, तो आपको क्यों यहाँ वहां भटकने की जरूरत है? आप इनका पढ़ लो, अल्टीमेटली आपको इनकम टैक्स के नॉलेज से मतलब है। अगेन आई शुड रिपीट माय सेंटेंस, द सोर्स ऑफ नॉलेज इज नॉट इंपॉर्टेंट, नॉलेज इटसेल्फ इज इंपॉर्टेंट। तो आपको नॉलेज लेने में आपको ज्यादा इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, ये बुक वो बुक करने की जरूरत नहीं है। सर कोई बाप लेवल का इंसान है, इनकम टैक्स के ऑलरेडी आप महान इंसान हो, अपने आप को अगर बहुत महान समझते हो, तो आपको जाना चाहिए incometaxindia.gov.in, इस पेज पे। इनकम टैक्स का पोर्टल अलग है, तो जो हम फाइलिंग पोर्टल बोलते हैं वो अलग है। सो दिस इज अ फाइलिंग पोर्टल, incometax.gov.in। अब देखो ये वाला पोर्टल जो है फाइलिंग पोर्टल है। फाइलिंग पोर्टल ओपन होगा तो ऐसे ओपन होगा, यहाँ पे सारा डेटा आएगा कि इंडिया में कितने कितने लोग, वैसे तो 142 करोड़ की आबादी है, लेकिन खाली 11.66 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स का लॉगिन आईडी क्रिएट किया है साहब, ओके। एंड इट इंक्लूड्स ओनली रजिस्टर्ड पीपल, दे आर नॉट टैक्स पेयर्स ऑफ इंडिया, प्लीज अंडरस्टैंड। फिर उसमें से कितने लोगों ने रिटर्न भरे अभी तक इस साल में, तो 6.89 करोड़, मतलब लेस देन 7 करोड़। वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस साल 8 करोड़ के आसपास तो रिटर्न जाएंगे, बट दैट इज द हायर साइड एक्सपेक्टेशन। लेट्स सी, अभी पूरा रिटर्न फाइलिंग का सीजन चालू है। तो 6.89 करोड़ लोगों ने अभी तक रिटर्न भरे हुए हैं, ओके, सॉरी 7.2 करोड़ लोगों ने रिटर्न फाइल किए हुए हैं, और उसमें से 6.89 करोड़ लोगों ने रिटर्न वेरीफाई किए। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न, जो सेक्शन 140 है। वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न मतलब आपको आधार लिंक ओटीपी डाल के रिटर्न को वेरीफाई करना होता है, ऑथेंटिकेट करना होता है कि आपने सारी चीजें कर ली है, देख ली है, तो दैट इज आधार लिंक ओटीपी। कभी कभी आधार लिंक नहीं होता, और टैक्स ऑडिट के जो लोग होते हैं उनके लिए डीएससी लगता है, डिजिटल सिग्नेचर हम बोलते हैं। तो दैट्स हाउ यू वेरीफाई द रिटर्न। तो 7.202 करोड़ के 7 करोड़ रिटर्न अभी तक फाइल हुए, ठीक है ना, और उसमें से 6.89 करोड़ वेरीफाई हुए हैं। उसमें से प्रोसेस हो गए मतलब इनकम टैक्स ने भी उसको क्रॉस चेक करके उसका जो 143(1) होता है, इंटीमेशन होता है, वो इशू कर दिया। वो कितने हो गए? 6 करोड़ 16 लाख, ओके। तो अब ये डेटा आप जरा समझने का ट्राई कीजिए, इसमें और इसमें गैप कितना है देखिए, 6.89 करोड़, तो 6.90 करोड़ पकड़ लेते हैं हम लोग, हाँ? और 6.16 करोड़ का जो है वो डेटा ऑलरेडी इनकम टैक्स ने वेरीफाई करके खत्म भी कर दिया। ये जो गैप है ना इन दोनों के बीच में जो गैप है, उनकी बैंड बजने वाली है साहब, ठीक है ना। बैंड बजने वाली है मतलब इनकम टैक्स नहीं चाहता कि इनका रिटर्न इजीली प्रोसेस हो जाए। तो इनकम टैक्स ने क्या करना चालू किया, अभी इनकम टैक्स पहले वार्निंग देता है, हल्का सा वार्निंग देता है, देखिए आपका रिटर्न हमने प्रोसेस नहीं किया, बिकॉज वी आर फीलिंग समथिंग इज नॉट क्लियर इन योर रिटर्न, सम काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव डन इन द रिटर्न, दैट द होल रिस्क असेसमेंट स्ट्रैटेजी, जो इनकम टैक्स का एक एआई है, ठीक है ना, उसके एआई को वो लोग बोलते हैं रिस्क असेसमेंट स्ट्रैटेजी। तो वो एआई ने आपका रिटर्न होल्ड पे रखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने रिटर्न आपका होल्ड पे रखा हुआ है। तो कोई एक चीज है आपके रिटर्न में जो सस्पिशियस लग रही है, शायद आपने डिडक्शन बहुत ज्यादा क्लेम किए, शायद आपने रिफंड बहुत ज्यादा क्लेम किया है, शायद आपका जो क्या बोलते हैं जो बिजनेस मॉडल है वो थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है, जो आपके रेशियोज है, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, वो बहुत ज्यादा वेरी हो रहे हैं लास्ट के कुछ सालों से।
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास बहुत सारा डेटा होता है आज के तारीख में, या एआईएस टीआईएस करके जो होता है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट. सो देयर आर लॉट ऑफ स्टेटमेंट, वी विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग, यू जस्ट हाउ टू हैव बेसिक आइडिया, क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है. तो भैया ये इनकम टैक्स का जो पोर्टल है, यहाँ पे से आपको पता चलता है कि कितने रिटर्न गवर्नमेंट ने होल्ड पे रखे हैं, उतने लोगों को नोटिस आने के चांसेस है. आएंगे जरूरी नहीं है, लेकिन आने के चांसेस है, ठीक है ना. तो यहां से वो डेटा आपको पता चलेगा कि कितने लोगों ने रिटर्न वेरीफाई फाइल किए, कितने लोगों ने वेरीफाई किए, और कितने लोगों के प्रोसेस हो चुके. जो प्रोसेस हो गए मैटर क्लोज, जो प्रोसेस नहीं हुए उनको अभी डरना चाहिए कि हमारा अगर प्रोसेस नहीं हुआ है तो हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ठीक है ना. तो ये जो पोर्टल है साहब, ये पोर्टल जो इसको फाइलिंग पोर्टल बोलते हैं, मैं फाइलिंग पोर्टल की बात नहीं कर रहा था. फाइलिंग पोर्टल एक दूसरा पोर्टल है. मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट की बात कर रहा हूं. तो उसका नाम है इनकम टैक्स इंडिया. इंडिया एक यहाँ पे ऐड हो जाता है .gov.in. तो फाइलिंग पोर्टल इज डिफरेंट एंड इनकम टैक्स का ऑफिशियल वेबसाइट इज डिफरेंट. तो मैं बात कर रहा था कि अगर आपको इनकम टैक्स का लॉ पढ़ना है एकदम बड़ी लेवल पे जाके, एकदम हायर लेवल पे जाके, तो आप क्या करोगे साहब? तो आप यहां पे जाओगे, यहां पे दिख रहा है आपको, यहां पे आप जाओगे इसमें, और यहां पे आप ओपन करोगे टैक्स लॉज एंड रूल्स. सारे दुनिया के जितने भी आपके बिजनेस लॉज है सारे यहाँ पे है. यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट भी है, ठीक है. तो आपने इनकम टैक्स एक्ट करना है. अब यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है देखिए, ठीक है ना, क्या क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे. इनकम टैक्स एक्ट 1961. वैसे तो आप ड्रॉप डाउन करोगे तो और भी एक्ट आपको ओपन हो जाएंगे, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग द अदर एक्ट, वी आर फोकसिंग एज ऑफ नाउ ऑन इनकम टैक्स एक्ट 1961. उसमें सब अमेंडेड बाय क्या होना चाहिए, मैंने बताया था आपको, फाइनेंस एक्ट 2023. तो लेटेस्ट लॉ जो है वो FA23 का लॉ है. तो FA23 का ही लॉ आपको पढ़ना है, क्योंकि वो लेटेस्ट लॉ है. वो अगले साल की बात कर रहा हूं, मैं जो लेक्चर्स ले रहा हूं वो अगले असेसमेंट ईयर के लिए. मतलब मैं कौन से अगेन आपको रिवाइज करा दूं, अगले असेसमेंट ईयर की बात, मतलब मैं असेसमेंट ईयर 24-25 की बात कर रहा हूं. असेसमेंट ईयर 24-25 में जो लॉ आपको एप्लीकेबल होगा उसको हमने रिकॉर्ड करना चालू किया, क्योंकि 23-24 तो रिकॉर्ड करके मतलब नहीं है अभी, क्योंकि उसका तो आधे से ज्यादा कंटेंट ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है. और दूसरा क्या है कि लॉ सब्सटेंशियली बदला हुआ है इस साल. फिनेंस एक्ट 2023 ने लॉ को बहुत ज्यादा बदला है. आपने सुना भी होगा 115 BAC करके एक जो स्कीम थी, जिसको पहले आप ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम बोलते थे, उसका भी नाम हो चुका है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम. डिफॉल्ट टैक्स रिजीम मतलब बाय डिफॉल्ट आपको नई वाली रिजीम लगेगी, आपको ऑप्ट नहीं करना है. अब आपको ऑप्ट आउट करना है अगर आपको नई वाली रिजीम नहीं चाहिए. तो पूरा जो इनकम टैक्स का जो स्ट्रैटेजी था ऑल्टरनेटिव रिजीम को इंप्लीमेंट करने का, वो उन्होंने पहले चेंज कर दिया. पहले बाय डिफॉल्ट आपको ओल्ड रिजीम लगती थी, न्यू रिजीम में जाना पड़ता था. अगले साल से क्या होगा, बाय डिफॉल्ट आपको जो ऑल्टरनेटिव रिजीम है, डिफॉल्ट रिजीम है, वो लगेगी. मतलब जिसको आज ऑल्टरनेटिव बोलते हो, आगे जाके उसका ही नाम डिफॉल्ट रिजीम है. सेक्शन 115 BAC की मैं बात कर रहा हूं. तो आपको डिफॉल्ट रिजीम लगेगी साहब. और डिफॉल्ट रिजीम जब आपको लगती है तो आपको अगर वो रिजीम से बाहर आना है तो आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, शिफ्ट आउट करना पड़ेगा. एक होता है ऑप्ट इन और दूसरा होता है ऑप्ट आउट. इस साल आप ऑप्ट इन कर रहे हो, अगले साल आप लोगों को अगर डिफॉल्ट रिजिम से बाहर आना है तो आपको ऑप्ट आउट करना है. तो ये लैंग्वेज बार बार यूज होगी आगे जाके, ठीक है ना, कि ये सेक्शन का बेनिफिट सेक्शन 1013 है, ऐसा आपको लैंग्वेज मिलेगा ना. 1013 है, आप लोगों ने बहुत कॉमन सेक्शन है 1013 है, वेरी कॉमन सेक्शन, बहुत सारे बच्चों ने सुना भी होगा ना. सेक्शन 1013 है, HRA करके कुछ होता है, HRA हाउस रेंट अलाउंसेस होता है. तो जब HRA पढ़ोगे तो उसके नीचे एक लाइन मिलेगी अभी आप लोगों को ना, यू विल फाइंड वन मोर एक्स्ट्रा लाइन बिलो HRA. टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ HRA द असेसी मस्ट ऑप्ट आउट फ्रॉम द डिफॉल्ट रिजीम. क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट रिजीम में सेक्शन 115 BAC में HRA का एग्जम्पशन नहीं मिलता. ओके तो नहीं मिलता और आपको चाहिए HRA का बेनिफिट, यू वांट टू क्लेम HRA का बेनिफिट. सो व्हाट द लॉ विल से नाउ, द असेसी मस्ट ऑप्ट आउट और शिफ्ट आउट फ्रॉम दी डिफॉल्ट रिजिम. तो ये ऑप्ट आउट का लैंग्वेज आपको समझना है साहब. अगर आप लोगों को सेक्शंस पढ़ने हैं, बेयर एक्ट पढ़ना है, तो आप लोगों को यहां पे आना है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आना है. सेक्शन वाइज अगर आप लोगों को कोई भी सेक्शन सर्च करना है, जैसे मैं अभी जो बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग अबाउट 115 BAC, तो आप यहाँ पे सेक्शन नंबर डालिए एंड देन सर्च के बटन पे क्लिक कीजिए, तो यू विल गेट द सेक्शन. ओके सो
अभी इसमें देखो कितना एडवांस लेवल पे उन्होंने वेबसाइट लेकर गए। इस सेक्शन को रिलेटेड रूल जो है वो रूल है 21 AG। तो देयर आर रूल्स दैट यू नीड टू फाइंड। और फॉर्म नंबर है फॉर्म 10I, एप्लीकेशन फॉर एक्सरसाइज और विड्रॉल ऑफ ऑप्शन। अभी आगे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन को विड्रॉ करना पड़ेगा। तो ऑप्शन को विड्रॉ करने के लिए कहीं ना कहीं तो कोई फॉर्म बनाया होगा, देयर हैज टू बी सम फॉर्म। तो उस फॉर्म का नाम है 10IE। देखो कितना सिस्टमैटिकली इनकम टैक्स ने वेबसाइट बना के रखा हुआ है। आई होप इट इज विजिबल। विजिबल है क्या आप लोगों के लिए? या सो 10IE करके है, क्या है अभी, लेकिन इसका नाम क्या है, एप्लीकेशन फॉर एक्सरसाइज और विड्रॉल ऑफ ऑप्शन। समझ में आ रहा है आपको? विड्रॉल करना है अगर आपको, तो आपको 10IE भरना है अगले साल से। अभी क्या करते हो आप, अगर 115 BSc में जाना होगा तो 10IE भरते हो। समझ में आ रहा है? ऑप्ट इन करना होगा तो फॉर्म भरना पड़ रहा था, अभी अगले साल से क्या होगा, बाय डिफॉल्ट लगेगा स्कीम। तो अभी आपको क्या करना है, अगर उसमें से बाहर आना है, बाहर कौन आता है, डिफॉल्ट रिजिम से बाहर कौन आता है, जिसने टैक्स प्लानिंग बहुत अच्छे से की है, जिसकी टैक्स प्लानिंग बहुत अच्छी है वही बाहर आएगा ना। तो जो बाहर आना चाहता है उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। जिन्होंने टैक्स प्लानिंग नहीं करते, जिनको टैक्स प्लानिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, उनके लिए तो डिफॉल्ट रिजिम ही अच्छी रिजिम है। सर डिफॉल्ट रिजिम में आपके क्या बता रहा हूं मैं, डिफॉल्ट रिजिम में आपका ये फॉर्म उन्होंने पूरा का पूरा दे दिया यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या नए अभी जो टैक्स के रेट्स हैं। अब ये नया अमेंडमेंट क्या दिख रहा है आपको, पहले डिफॉल्ट रिजिम वाज ओनली एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल, नाउ इट इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो इंडिविजुअल एंड HUF के लिए, ओके। व्हाट इज द चेंज नाउ, ये ओल्ड वाला लॉ था ना, 2.5 लाख से बढ़ता था, एंड 5%, 10%, 15%, 20%, 25% भी था, एंड देन आफ्टर 15 लाख 30% होता था। तो ये जो 25% वाला जो स्लैब है वो डिलीट कर दिया निर्मला सीतारमन मैडम ने, क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है ना, उन्होंने बोला अभी हम लोगों के पास 7 स्लैब नहीं रहेंगे, वी विल हैव ओनली 6 स्लैब। एक स्लैब ही उन्होंने हटा दिया। तो स्लैब हटा दिया तो बेनिफिट को क्या किया, फिर 50,000 से अर्लियर लॉ में उन्होंने डिवाइड कर दिया। तो वी डोंट हैव एनी 25% वाला रेट इन न्यू स्कीम। ठीक है ना, 25% नहीं है, तो डायरेक्टली 20 के बाद कितना होगा, 30 होगा। ओके, तो जो ये आप लोगों को देखना है वो देख लीजिए साहब। ये डिफॉल्ट रिजिम इसको बोला जाता है। अप टू 3 लाख नील, 3 लाख टू 6 लाख 5%, 6 लाख टू 9 लाख 10%, 9 लाख टू 12 लाख 15%, 12 लाख टू 15 लाख 20%, एंड अबाउट 15 लाख 30%। तो याद क्या रखना है आपको, 3 लाख पे स्लैब चालू होता है, अप टू 3 लाख नील है, एंड देन फॉर एवरी इंक्रीज इन 3 लाख एड अनदर 3 लाख एड अनदर 5%। आप समझ रहे हैं ना? तो क्या होगा कि 0 में 5% ऐड करो तो 5% आ जाएगा। तो 3 लाख टू 6 लाख 5%, अनदर 3 लाख, 6 लाख टू 9 लाख 10%, ओके, 9 लाख टू 12 लाख 15%, 12 लाख टू 15 लाख 20%। अब 15 लाख पे आ गए, यू शुड नो कि 15 लाख के बाद डायरेक्टली क्या होने वाला है, 30% हो रहा है। सो देयर इज नो 25% वाला स्लैब। दिस इज व्हाट यू नीड टू ऑब्जर्व। एम आई क्लियर विद दिस मच? तो दिस इज व्हाट इज नोन एज न्यू रिजीम, जो आज आप बता रहे हो। अगले साल इसका नाम क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट रिजीम। तो साहब अगर आपको डिफॉल्ट रिजीम में से अगर बाहर आना है, ये बाय डिफॉल्ट लगेगा, डिफॉल्ट रिजीम से बाहर आना है तो कौन सा फॉर्म भरेंगे, फॉर्म 10I। बाहर क्यों आएंगे, टैक्स के रेट कम है, क्योंकि नॉर्मल टैक्स के रेट क्या है, आपने 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख and 20%, and above 10 lakh 30%. तो why somebody will go in the optional regime? अब उस regime का नाम क्या हो जाएगा, ऑप्शनल regime। जो रेगुलर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शनल regime। तो why somebody will go in ऑप्शनल regime, मैं आपको पूछ रहा हूं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए उसका, क्योंकि सर उसने क्या करके रखा होगा,
टैक्स प्लानिंग। तो टैक्स प्लानिंग करने के लिए अलग अलग सेक्शंस होते हैं। तो एक सेक्शन होता है जिसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि साहब देयर इज द सेक्शन कॉल्ड 10AA, देयर सेक्शन कॉल्ड 10AA। अगर आपका यूनिट अगर सेज में होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में होगा, तो आपको 10AA 100% डिडक्शन देता है आपके प्रॉफिट का। तो इस साल आपका प्रॉफिट 3 करोड़ है। कितना है? 3 करोड़ है। 3 करोड़ आपका प्रॉफिट हुआ, पीजीबीपी, ठीक है ना, ऐसा 3 करोड़ का हुआ। एक्सपोर्ट प्रॉफिट आपका 3 करोड़ आ गया। आपको 10AA डिडक्शन कितना देने वाला है? 100%। तो 3 करोड़ माइनस होने वाला है। तो 3 करोड़ में से 3 करोड़ चला गया, टैक्स कितने पे भरोगे? नील पे। तो डिफॉल्ट रीजिम में जाओगे कि ऑप्शनल रीजिम में जाओगे? 10AA इज अवेलेबल ओनली इन द ऑप्शनल रीजिम। तो अभी इंसान कहां पे चला जाएगा? ऑप्शनल रीजिम में, ठीक है ना। तो इफ यू नो स्पेशल प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स लॉ थ्रू विच यू कैन सेव योर टैक्स, और आपने वो प्लानिंग करके रखी हुई है, तो ही आप कहां पे जाओगे? ऑप्शनल रीजिम में। ओके, नहीं तो कहां पे रहोगे आप? डिफॉल्ट रीजिम में। अब प्रॉब्लम हम लोगों के साथ क्या होने वाला है, हमारा हर क्लाइंट हमको पूछता है, क्लाइंट है तो उसका तो हक बनता है कि मेरे लिए कौन सी रीजिम अच्छी होगी। अब आप बाय डिफॉल्ट नहीं बोल सकते आपके लिए डिफॉल्ट रीजिम अच्छी होगी। तो व्हाट वी हैव टू डू इन नेक्स्ट ईयर, वी हैव टू क्रिएट 2 कंप्यूटेशंस। 2 कंप्यूटेशन बनाने पड़ेंगे। एक ऑप्शनल रीजिम में, दिस इज व्हाट ही हैज अंडरस्टूड, इतने सालों से उसने इनकम टैक्स ऐसे ही समझा है, तो दैट इज ऑप्शनल रीजिम। एंड वन इज डिफॉल्ट रीजिम, जो नई रीजिम है, और उसको कंपेयर करके दिखाना है। इफ यू गो इन ऑप्शनल रीजिम, दिस मच अमाउंट ऑफ टैक्स यू विल एंड अप पेइंग, एंड इफ यू गो इन डिफॉल्ट रीजिम, दिस मच अमाउंट ऑफ टैक्स यू विल एंड अप पेइंग। सो ये 2 रीजिम हो गए। रीजिम क्लियर हो गए। दूसरा, मैं आपको रीजिम नहीं पढ़ा रहा था मैं आपको, वो मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा। वी विल हैव डिफरेंट लेक्चर फॉर 115 BSc। व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, हाउ टू सर्च कि लेटेस्ट लॉ कहां पे है। तो मैंने कहां पे सर्च किया ये सब कुछ? कौन सी वेबसाइट पे सर्च किया? incometaxindia.gov.in, गवर्नमेंट की वेबसाइट है। मेरे नोट्स में टाइपिंग एरर हो सकता है, गवर्नमेंट की कोई भी और एक किताब में टाइपिंग एरर हो सकता है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे तो नहीं होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज बेयर एक्ट। इसको क्या बोला जाता है? बेयर एक्ट। बेयर एक्ट मतलब जो एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया था एज इट इज, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई डिजाइन नहीं, एज इट इज जो ओरिजिनल लॉ स्ट्रक्चर्ड हुआ था वही वहां पे पुट किया जाता है। जो लॉ में है, ओरिजिनल लॉ में, उसको कौन सा एक्ट बोला जाता है? बेयर मतलब समझते ना, बेयर, BARE, बेयर। बेयर मतलब बेयर, एकदम सिंपल। जो एक्ट बना वही वहां पे डाला जाता है। तो इफ यू कैन रीड एंड अंडरस्टैंड द बेयर एक्ट, एक्सलेंट, बट फॉर दैट यू नीड टू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल लैंग्वेज, लीगल इंग्लिश आपको आनी चाहिए। इफ यू कैन डू दैट, नथिंग लाइक इट। क्योंकि हम लोगों को भी जब कंफ्यूजन होता है तो वी हैव टू रेफर टू द बेयर एक्ट कि बेयर एक्ट क्या बोलता है। ऑथर तो कुछ भी बोल सकते हैं, बेयर एक्ट क्या बोलता है, लास्ट में हम यहीं पे जाते हैं। तो दिस इज द लास्ट रिसोर्स दैट वी फॉलो। ऑब्वियसली एज अ स्टूडेंट आप लोगों को अगर बेयर एक्ट में से पढ़ाया जाए या पढ़ने जाओ तो बहुत डिफिकल्ट जाएगा। तो वी विल हैव आवर ओन नोट्स, ठीक है ना, मैं आपको नोट्स में से पढ़ाऊंगा। चलो आगे चलता हूं। तो यहाँ पे ये फाइलिंग पोर्टल है, आप यहाँ पे भी जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन फाइलिंग पोर्टल पे अभी जो चीजें अवेलेबल है वो पुराने लॉ के हिसाब से, मतलब फाइनेंस एक्ट 2022 के हिसाब से, क्योंकि अभी असेसमेंट ईयर चालू ही नहीं हुआ ना। यहाँ पे आप कहीं पे भी जाके अगर क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि असेसमेंट ईयर 23-24 की बात कर रहा है। हम अभी जो बात कर रहे हो असेसमेंट ईयर 24-25 जो अगले साल होगा। तो अगले अप्रैल और मई में, अप्रैल या मई में वेबसाइट फिर से अपडेट हो जाएगी पूरी की पूरी। तो ये फिर से 0 होना चाहिए ना। ये अभी हमारे कौन से एवाई की बात कर रहे हैं? यहाँ पे एवाई कौन सा दिख रहा है आपको? कैन यू सी दिस एवाई? एवाई 23-24। जब ये एवाई शिफ्ट हो जाएगा 24-25, हम उस एवाई का लॉ पढ़ रहे हैं। ओके, क्लियर है? तो मैं ये बार बार क्यों बता रहा हूं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नहीं तो ऑफिस में जाके यहाँ पे ये सीखोगे और ऊपर जाके बोलोगे अरे यार ये कैसे हो गया, तो सर ने कुछ और बोला था, यहाँ पे वो कुछ और रहा है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, अलग अलग एवाई की बातें हम कर रहे हैं। आप काम कर रहे हो एवाई 23-24 पे, और मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ एवाई 24-25 के लिए। अगले साल का लॉ आपको पढ़ा रहा हूँ। लेटेस्ट पढ़ना हमेशा अच्छा होता है। सर लेकिन मेरा तो मुझको ये वाला एवाई पढ़ना है। अगले साल के एवाई का लॉ और इस साल के एवाई का लॉ इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव है मतलब इस साल जो भी लॉ में हो रहा है वो सब कुछ अगले साल भी होने वाला है। समझ रहा है? मतलब अगले साल का पढ़ोगे तो इस साल में जो भी लॉ है, एग्जिस्टिंग लॉ है, वो तो कवर हो ही जाएगा। एडिशनली कुछ चीजें हम बात करके चलेंगे।
और 115 बीएससी पूरा चेंज हो चुका है क्योंकि उसका स्लैब ही चेंज हो गया। तो बीएससी का कोई भी ओल्ड क्वेश्चन और न्यू क्वेश्चन आप देखोगे तो उसमें बहुत ज्यादा आपको वेरिएशन मिलेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब टैक्स के स्लैब चेंज हुआ है। यू शुड अंडरस्टैंड, टैक्स का स्लैब चेंज हुआ और उसका नाम चेंज हो गया। अभी ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम था, नहीं इसमें इसका नाम क्या है, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, बस उतना ही चेंज है। तो एक लेवल पे ऐसा है तो मतलब इनकम टैक्स का नाम मार्केट में खराब है कि हाय हाय कितना चेंज करते रहते हैं, और दूसरी लेवल पे मैं आपको बता रहा हूं उतना भी चेंज नहीं हो रहा जिसके हाय हाय करते बैठो आप। देश बदल रहा है, देश के लोग बदल रहे हैं, इंडस्ट्री बदल रही है, तो ऑब्वियसली उसके जो रिलेवेंट लॉज है वो भी चेंज होते रहेंगे। एंड यू शुड ऑलवेज वेलकम द चेंजेस, क्योंकि चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले वाला परफेक्ट नहीं था। अगर पहले वाला परफेक्ट होता तो चेंज क्यों करेंगे। तो हमारा लॉ परफेक्ट नहीं है, तो लेट अस एक्सेप्ट दिस एंड एक्नॉलेज इट। वी आर नॉट अ परफेक्ट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, बट वी आर द बेस्ट वर्जन दैट कुड बी इमेजिन। इट्स नॉट परफेक्ट बट द बेस्ट पॉसिबल वर्जन हम आज लेके चल रहे हैं हमारे साथ। तो लॉ पढ़ने के टाइम पे आपको डिफिकल्टी जरूर लगेगी, डिफिकल्टी इसलिए लगती है, आप डेटा देख लीजिए ना, आपको भी खुद को कहीं ना कहीं फील होना चाहिए कि क्यों इनकम टैक्स लॉ में इतना कॉम्प्लिकेशन है। इनकम टैक्स लॉ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इनकम टैक्स लॉ में दो शब्द में यूज करते रहूंगा हमेशा। एक शब्द में यूज करूंगा सार, and then there will be another word which is known as GAR. Okay, so what is the full form of SAR? Specific Anti-Avoidance Rules. And what is the full form of GAR? General Anti-Avoidance Rule. चलो ये तो अभी इंटरनेशनल लेवल पे फिलहाल एप्लीकेबल हो रहा है, लेकिन गार जब डोमेस्टिक लेवल पे अप्लाई होगा, कैन यू प्लीज क्लोज डोर प्रॉपर्ली। गार जब डोमेस्टिक लेवल पे अप्लाई होगा तो यू कैन सी जो ये टैक्स की चोरी अभी चालू है मार्केट में, अभी भी चालू है, कैन वी एक्नॉलेज दैट कि मार्केट में अभी भी टैक्स की चोरी चालू है इतना स्ट्रिक्ट लॉ होने के बाद भी। मतलब मुझे कभी कभी इतना बुरा लगता है, लोग जो ट्रैफिक के रूल्स है उसको ज्यादा सीरियसली लेते हैं एज कंपेयर टू इनकम टैक्स। यहाँ पे 500 रुपए की फाइन लगेगी अगर आपने ट्रैफिक का रूल अगर तोड़ा, इफ यू डोंट फॉलो द आरटीओ का एक्ट, दे विल पुट मैक्सिमम 500,000, 10,000, 15,000 रुपीज का फाइन, नॉट मोर देन दैट। लेकिन इनकम टैक्स का लॉ अगर आपने तोड़ा तो देयर आर हार्श कॉन्सिक्वेंसेस, बट पीपल आर टेकिंग इनकम टैक्स का लॉ वेरी लाइटली। दे आर थिंकिंग अरे यार तोड़ लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, अभी तक नहीं हुआ, 20 साल से नहीं हुआ, अभी कैसे होगा, अभी होगा। गार जब डोमेस्टिक लेवल पे अप्लाई होगा तो जरूर प्रॉब्लम होगा। थैंकफुली जो टैक्स के चोर है उनकी यहाँ पे बात कर रहा हूं। गार अभी इंटरनेशनल लेवल पे चालू है क्योंकि इंडिया में बहुत सारी एमएनसीज काम कर रही है एंड दे आल्सो अवॉइड टैक्सेस इन इंडिया, दे आल्सो इवेट टैक्सेस इन इंडिया। इंटरनेशनल कंपनी मतलब आप समझ रहे हो ना, यू ऑल आर सराउंडेड बाय इंटरनेशनल कंपनी। आप मोबाइल की कोई भी कंपनी लो, सारी कौन है, फॉरेन की कंपनी है। सिमिलरली यू थिंक अबाउट सॉफ्टवेयर विच आर देयर इन द हार्डवेयर, सारी कहां की है, फॉरेन की है। आप कोई भी ब्रांडेड शूज ले लो या ब्रांडेड कपड़े ले लो, वो भी कहां के हैं, फॉरेन के हैं। आप कोई भी कार की कंपनी ले लो या कार के कंपोनेंट की कंपनी ले लो, भले ईवी इंडिया में बनती है लेकिन उसके कंपोनेंट अभी भी बाहर से ही बनते हैं, बैटरी अभी भी बाहर ही बनती है। मतलब सारे जितने भी व्हीकल है वो सारे भी फॉरेन कंपनी हो गए। आप कोई भी फूड ले लो जो ब्रांडेड है, फूड, बर्गर, पिज्जा, केएफसी, ये सारी भी कंपनीज बाहर की है। आप कोई भी इंश्योरेंस कंपनी पकड़ लो, भारतीय एक्सा, भारतीय इंडिया की होती है, एक्सा फॉरेन वेंचर है, मतलब वो जॉइंट वेंचर में चलता है, एक इंडिया की और एक फॉरेन की, मतलब फॉरेन वहां पे भी है, इंश्योरेंस में भी है, बैंकिंग में भी हमारे यहाँ पे एचएसबीसी, सिटी बैंक वगैरह सब इंडियन बैंक्स नहीं है, ये सारी फॉरेन बैंक्स है, मतलब बैंकिंग में भी बाहर की बैंक्स इन्वॉल्व है। तुम जो कोलगेट यूज करते हो वो भी इंडियन नहीं है, तुम जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो पेप्सी एंड कोको कोला वो भी इंडियन नहीं है। मतलब मुझे इन शॉर्ट क्या बताना, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। टेक्नोलॉजी से लेके, हार्डवेयर से लेके, कपड़ों से लेके, जूतों से लेके, जो हम खाते हैं, जो ब्रश करते हैं, वो सब कुछ क्या है, फॉरेन का है। तो आपको नहीं लग रहा हमारी इंडिया में टैक्स का रेट है फॉरेन कंपनी का 40% बेस रेट, आपको नहीं लग रहा फॉरेन कंपनी कुछ तो ऐसा प्लानिंग करती रहेंगी that they end up paying very less amount of tax in India ना।
तो उसके लिए जो लॉ बना है उसके लिए उसका नाम है इंटरनेशनल टैक्सेशन. ऑब्वियसली वी आर नॉट कवरिंग इंटरनेशनल टैक्सेशन एज ऑफ नाउ. जब डोमेस्टिक खत्म होगा वी विल थिंक अबाउट इंटरनेशनल टैक्सेशन आल्सो, बट दैट इज नॉट नीडेड एज ऑफ नाउ बिकॉज वी आर नॉट हैविंग प्रैक्टिकली आवर फर्म डजंट हैव एनी इंटरनेशनल असेसी एज ऑफ नाउ. एक दो इंडिविजुअल है उनके लिए जितना भी लॉ पढ़ना पड़ता है उतना हमने पढ़ के रखा है. टैक्सेशन ऑफ नॉन रेसिडेंट हम उसको बोलते हैं, बट वी डोंट डू इंटरनेशनल टैक्सेशन कॉर्पोरेट का स्ट्रक्चर, क्योंकि हम छोटे लोग हैं, छोटी फर्म है. ठीक है ना. तो ये हो गया इंटरनेशनल टैक्सेशन की बात. उसके लिए क्या बनाया गया है? गार. गार वैसे बोला नहीं कि उन्होंने इंटरनेशनल के लिए बनाया है, लेकिन जो अप्लाई हो रहा है आज की तारीख में वो किसके लिए हो रहा है? इंटरनेशनल पे. मैं उस दिन का बहुत अच्छे से वेट कर रहा हूं कि बाबा गार डोमेस्टिक लेवल पे आ जाए, गार को इंडिया में उतार दे. जिस दिन गार को इंडिया में उतार देंगे ना, उस दिन जो आप लोग जादू करते हो ना, कौन सी जादू करते हो आप लोग? जैसे कैश का पेमेंट 50,000 कर दिया ना, कैश का पेमेंट का आपको एक वाउचर कितना मिल गया? 50,000 का. इमीडिएटली आप कौन सा सेक्शन लगाते हो? 48(3). हाँ, और उसको क्या बताते हो? नहीं 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 50,000 का पेमेंट नहीं कर सकते एक दिन में, कैश का डिसअलाउड हो जाएगा पूरा का पूरा. आप एक जादू कीजिए. क्या जादू कीजिए? इसके 5 वाउचर बनाइए साहब, 5 वाउचर्स. ठीक है ना, 10,000 के 5 बना दो, 5 एंट्री मारो अलग अलग दिन पे. ये जो आप लूप होल को एक्सप्लॉइट करते हो उसको ही रोकने के लिए क्या बनाया गया है? रोकेगा उसको. लेकिन आज ये 50,000 रुपया गवर्नमेंट के लिए बड़ी अमाउंट नहीं है, तो नहीं अप्लाई कर रहा. क्यों? बिकॉज देयर आर कंपनीज व्हिच आर प्लेइंग विद अस विद 50,000 करोड़ का प्रॉफिट. वी वांटेड टू कैप्चर दैट फर्स्ट. लेकिन एक बार वो कवर अप हो जाता है तो फिर आप लोगों को छोड़ने नहीं वाला गवर्नमेंट. तो आप लोग रेडी रहिए, बिकॉज वी हैव टू बी फ्यूचर रेडी. नो, ओरिजिनल बात तो वही हुई थी हमारी कि हमको क्या होना है? फ्यूचर रेडी होना है. तो इनकम टैक्स कितना डीप में जाने वाला है उसका हिंट दे रहा हूं मैं आप लोगों को. Then there is something called SAR, Specific Anti-Avoidance Rule. ये 48(3 अपने आप में एक सार है कि कैश पेमेंट 10,000 के ऊपर नहीं होना चाहिए. बताओ क्यों लगाया होगा गवर्नमेंट ने इसका? इसका क्या लॉजिक होगा? 10,000 का कैश एक्सपेंडिचर के ऊपर क्यों लगाया होगा? बैंक के ऊपर नहीं है. मतलब गवर्नमेंट ये नहीं बोल रहा है कि 10,000 के ऊपर आप खर्चा मत करो. करो, बिजनेस करो, आपकी बिजनेस है, यू हैव टू स्पेंड मनी, बट देन यूज बैंकिंग चैनल. क्यों? क्या लॉजिक है? सोचो 2 मिनट. 10,000 का लिमिट क्यों रखा है कैश के ऊपर? लॉजिक से बात करो. ट्रैक क्यों चाहिए? इसमें 2 लोग चोर हो सकते हैं. एक एक्सपेंस करने वाला चोर हो सकता है. एक्सपेंस करने वाला चोर क्यों हो सकता है बताओ? उसने ये खर्चा किया ही नहीं है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा आ रहा है बिजनेस का, लाइक लॉट ऑफ प्रॉफिट इज देयर. हाउ विल यू रिड्यूस इट? इनकम कम करके. बट कैन यू एक्चुअली रिड्यूस द इनकम अगर जीएसटी रजिस्टर्ड होगा तो? No, we can't play with that because GST के रिटर्न तो ऑलरेडी फाइल हो चुके, because that gets filed on monthly basis. तो मार्च का रिटर्न तो जा चुका है अप्रैल में ही साहब. And that's the reason GST don't allow you to play, क्योंकि जीएसटी को पता है, जीएसटी डिपार्टमेंट को पता है आगे जाके जब इनको पता चलेगा इनका टर्नओवर ज्यादा है, they will play. So that's the reason they are taking the data on monthly basis. अभी ई इनवॉइसिंग से तो क्या हो गया? मंथली भी छोड़ दो, डेली बेसिस पोर्टल पे ही जाके इनवॉइस बनाओ आप. जीएसटी उतना नीचे उतर गया है, आप समझ रहे हो ना? मतलब क्योंकि एक महीने के बाद भी झोल हो रहे हैं. अभी डेटा मंथली जा रहा है तभी भी उसमें झोल हो रहे हैं. तो वो बता रहे कि नहीं नहीं अभी पोर्टल पे ही बिल बनेंगे. अब जब बिलिंग ही पोर्टल पे बन जाएगा तो कैसे आप सेल्स आप छुपा नहीं सकते? अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड हो और आपको ई इनवॉइसिंग लगा हुआ है, या मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी स्क्रू टाइट करने चालू कर दिए, तो सेल्स के साथ हम खेल नहीं सकते. वी कैन नॉट प्ले विद द सेल्स. तो क्या करोगे आप? जो बहुत कॉमन सेंस से आता है मन में, वो क्या होता है? सारे अकाउंटेंट, मतलब उसके लिए सीए करने की कोई जरूरत नहीं है, बीकॉम वाले अकाउंटेंट को भी पता है कि खर्चा बढ़ा देंगे तो प्रॉफिट कम होगा. अब मुझे बताओ, क्या आप सच में पागल हो? सच में पागल हो कि प्रॉफिट कम करने के लिए, प्रॉफिट को कम करने के लिए, कि सच में आप एक्सपेंस बढ़ा दोगे? जिसकी सैलरी 15,000 उसको 25,000 दे दोगे? रेंट ज्यादा दे दोगे? मतलब एक्चुअली तो खर्चा नहीं बढ़ाओगे ना, तो क्या करोगे? एंट्री मारोगे. सच की एंट्री कि झूठ की एंट्री? झूठ की एंट्री तो बैंक में से जाती नहीं, तो झूठ की एंट्री कहां से जाती है? कैश में से जाती है. तो गवर्नमेंट ने इसको बोल दिया नहीं 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 नहीं, आप कैश में ज्यादा जादू मत करो. करो लेकिन ज्यादा मत करो. आपको भी पता है 10,000 के नीचे करो, 10,000 के ऊपर मत करो, क्योंकि 10,000 पर डे पर पर्सन का लिमिट है. पर डे पर पर्सन का लिमिट है.
तो एक पर्सन को पकड़ के आप उसको 10,000 से ज्यादा पेमेंट नहीं दिखा सकते। तो एक तो उसको पकड़ लिया, दूसरा क्योंकि वो बोल रहे बैंकिंग चैनल से आप पैसे दो, अब जेन्यून खर्चा होगा, या तो खर्चा जेन्यून होगा या तो नहीं होगा, नहीं होगा तो ये सेक्शन पकड़ लेगा। और जेन्यून एक्सपेंस है, आपको नहीं लग रहा इकोनॉमी में एक का एक्सपेंस दूसरे का इनकम होता है? इकोनॉमिक्स, थोड़ा इकोनॉमिक्स समझ में आना चाहिए आपको। एक्सपेंस ऑफ वन पर्सन बिकम्स इनकम ऑफ अनदर पर्सन। हम कमाते ही खर्चा करने के लिए, तो हम हमेशा एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की बात क्यों करते हैं? व्हाई गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री? क्योंकि जितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी उतने ज्यादा लोग पैसे कमाएंगे। देखो साइकिल कैसी है, लोगों के पास ज्यादा रुपया आएगा तो लोग ज्यादा एक्सपेंस करेंगे, एक्सपेंस करेंगे मतलब मार्केट में डिमांड पुट होगी। आज जो आपके पास एक ही शर्ट होता है, ज्यादा पैसे कमाते हो तो आप 6 शर्ट लेते हो, तो गारमेंट इंडस्ट्री में डिमांड चली गई। गारमेंट की इंडस्ट्री अगर हम पकड़ते तो गारमेंट तो शर्ट सेल, मतलब आपने होलसेलर या रिटेलर से शर्ट खरीदी होगी, उसके पीछे कौन होता है? मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर कपड़ा लेके क्या करता है? शर्ट बनाता है। तो बहुत सारे लोगों को जॉब मिल गया, जो टेलर इंडस्ट्री में काम करते होंगे ना, मतलब लेबर क्लास है, जॉब मिल गई, मतलब और एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। अब सोचो गारमेंट में क्या क्या लगता है? बटन बनते हैं, तो बटन इंडस्ट्री को ऑर्डर गया। कपड़ा बनता है, कपड़ा इंडस्ट्री को ऑर्डर गया। कपड़े, कपड़ा धागे से बनता है, थ्रेड से बनता है, तो उस इंडस्ट्री में ऑर्डर गया। धागा कॉटन में से बनता है, फार्मर के पास पैसा पहुंच गया। एक सिंपल सी इंडस्ट्री अगर बात करते हो, कॉटन को धागे बनाने वाली फैक्ट्री में पहुंचाना है, मतलब ट्रांसपोर्ट बढ़ गया। धागा कपड़ा बनेगा, कपड़ा फिर फैक्ट्री में आएगा, गारमेंट में आएगा जहां पे ये मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ गया। और जितनी ज्यादा, एक सादा कपड़ा कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है आप सोचो, ठीक है ना? तो इतनी एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में जनरेट होती है। अब जितनी ज्यादा इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी उतने ज्यादा लोगों के हाथ में पैसे आएंगे। फिर वो पैसे क्या करेंगे? अभी दूसरा डिमांड पुट करेंगे, अब मोबाइल लेंगे। वो मोबाइल लेंगे तो अब समझो कितनी बड़ी इकोनॉमी हो गई। अब मोबाइल का दुकान मत आप देखो, मोबाइल के पीछे क्या क्या बनता होगा ना, कितने कंपोनेंट बनते, कितनी कंपनीज होंगी जो अलग अलग कंपोनेंट बनाती होंगी। तो वो हो गया। फिर क्या होगा? ज्यादा पैसे कमाएंगे लोग, और लोग पैसे कमा रहे हैं, तो कार की डिमांड कर दी। एक कार की डिमांड कर ली, मतलब भैया क्या क्या मांग लिया उन्होंने। लाइट बनाने वाली कंपनी के पास ऑर्डर चला गया, वायर बनाने वाली कंपनी के पास ऑर्डर चला गया, टायर बनाने वाली कंपनी के पास ऑर्डर चला गया, नट बोल्ट बनाने वाली कंपनी के पास ऑर्डर चला गया। इकोनॉमी में कितनी डिमांड पड़ती होगी? सर इतने पैसे नहीं है हमारे पास, तो लोग लोन लेके खर्चा करते, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है कि मैं, जॉब है मेरे पास, जॉब है तो आई कैन बोरो द लोन, और बैंक को भी कॉन्फिडेंस है, तो बैंकिंग इंडस्ट्री ग्रो हो गई। हाँ, अब इंसान को पता चलता है कि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रखी है, घर लेके रखा है, गाड़ी लेके रखी है, क्रेडिट कार्ड लेके रखे, दुनिया भर के एक्सपेंस करके रखे हैं, और मैं कभी भी मर सकता हूं, तो मुझे अभी क्या लेना पड़ेगा? तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री ग्रो हो जाती है। इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से हर एक चीज का ग्रोथ होता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है, और हर चीज का ग्रोथ होगा तो गवर्नमेंट को क्या मिलना चाहिए? हर ट्रांजैक्शन पे, मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन हो, गवर्नमेंट को क्या मिलना चाहिए? टैक्स मिलना चाहिए, डायरेक्ट और दोनों मिलना चाहिए। तो भैया अगर कैश में चला गया, पूरा इकोनॉमी में फ्लो जो चल रहा है ना, ये किस में चला गया? कैश में। तो वी आर क्रिएटिंग अ ब्लैक इकोनॉमी, वी आर क्रिएटिंग अ ब्लैक इकोनॉमी, अनअकाउंटेड इकोनॉमी, जिसमें ना जीएसटी भरा जाता है ना इनकम टैक्स। ये समझ में आ रहा है? अगर बैंकिंग चैनल से गया तो वी आर क्रिएटिंग अ वाइट इकोनॉमी, मतलब एवरी एक्सपेंस विल बिकम इनकम। और क्योंकि उसका वो इनकम बन चुका है, अब उसको खर्चा वाइट में बनाना पड़ेगा, तो फिर वो भी बैंकिंग में खर्चा करेगा। उसने बैंकिंग में खर्चा किया तो उसके सामने जो बंदा है वो अभी इनकम छुपा नहीं सकता, क्योंकि पैसे बैंक में आए। आप समझ रहे हो क्या? व्हाइट जनरेट्स व्हाइट, ब्लैक जनरेट्स ब्लैक। तो मार्केट में कैश का सर्कुलेशन कम हो, इसलिए उन्होंने वो रूल बनाया। तो इनकम टैक्स लॉ वाज नॉट सपोज टू बी कॉम्प्लिकेटेड लॉ, इट वाज वेरी सिंपल लॉ। भैया आपका इनकम है 30%, उसका भर दो। 2 पेज का इनकम टैक्स का लॉ होना चाहिए था, लेकिन आज इनकम टैक्स का लॉ 5,000 प्लस पेजेस का है। लॉ, बेसिक लॉ 5,000 प्लस पेजेस का है। बोलने के लिए 298 सेक्शन है, लास्ट सेक्शन क्या है, नंबर क्या है? 298, लेकिन एक्चुअली 800 से ज्यादा सेक्शन है इनकम टैक्स लॉ में। 80C, 80CCC, 80CCD, नंबर 80 है, लेकिन 80 में 50 सेक्शन आ जाते हैं, तो 800 से ज्यादा सेक्शंस है।
कम से कम आप लोगों को 2 से 3 हजार केस लॉ पढ़ने पड़ते हैं, मिनिमम 2 से 3 हजार केस लॉ पढ़ने पड़ते हैं, है तो लाखों, लेकिन मिनिमम 2 से 3 हजार आपको लैंडमार्क जजमेंट पढ़ने पड़ते हैं टू अंडरस्टैंड द लॉ। तो बहुत पढ़ना है। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद खत्म हो जाता है क्या? नहीं, खत्म कहाँ होता है। फिर रूल्स है, नोटिफिकेशन है, सर्कुलर्स है, हर दिन अमेंडमेंट आती जा रही है, हर महीने कुछ ना कुछ चेंज होते जा रहा है, तो नेवर एंडिंग है। तुमने अगर इस फील्ड में पैर रखा है तो रीडिंग इज नेवर एंडिंग अप। मुझे ही देख लो, मैंने भी तो सोचा था 2014 में सीए कंप्लीट हो गई, अब नहीं पढ़ाई करूंगा, और तुम लोगों से ज्यादा तो मुझे पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों को सिखाना है। अब सिखाने के लिए भी 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं साहब। एक वो टाइप के स्टूडेंट होते हैं जो पैसा भर के सीखने आते हैं, मतलब उनमें इंटरेस्ट होता है सीखने का, और एक तुम होते हो जिनको इंटरेस्ट भी नहीं है पढ़ने का। तो 2 टाइप के बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो इंटरेस्टेड है और जो नॉट इंटरेस्टेड है। इजी किसको होता है पढ़ाना? हाँ, तो मैं बस आपसे उतनी ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इंटरेस्टेड बनो, आप इनकम टैक्स में इन्वेस्टेड रहो, तो इनकम टैक्स आपके अंदर जाएगा, नहीं तो इनकम टैक्स आपके अंदर नहीं जाने वाला है। महात्रिया क्या बोलते हैं, महात्रिया के एक सेशन में वो सेंटेंस बोला गया था, पता है आपको? महात्रिया एक बार बता रहे थे किसी सेमिनार में, बहुत बड़ा वेबिनार था, बहुत सारे लोग थे सामने, उसमें बता रहे थे महात्रिया, इफ यू गो थ्रू भगवत गीता द लाइफ विल चेंज एंड ऑल। सब लोग बताते हैं, सारे स्पिरिचुअल लीडर क्या बोलते हैं कि आप अगर भगवत गीता पढ़ते हो तो आपकी लाइफ बदल जाती है, बिकॉज सबसे डिफिकल्ट जो चीज है उसका आंसर भगवत गीता में लिखा है। लाइफ के, लाइफ एज अ सब्जेक्ट अगर आप बात करते हो तो सब्जेक्ट की बुक है, मॉड्यूल है। तो एक पर्सन ने हाथ ऊपर किया और महात्रिया को बहुत ही पोलाइटली उसने रिक्वेस्ट की और पूछा, महात्रिया आई हैव गॉन थ्रू भगवत गीता 100+ टाइम, I don't even remember, but 100+ time I have gone through the Bhagavad Gita, but nothing changed in my life. कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। भगवत इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने उसने ये सवाल पूछ लिया, जहां पे महात्रिया भगवत गीता के बारे में बोल रहे हैं। दिस इज समबडी हु इज क्रिटिसाइजिंग द भगवत गीता, सेइंग आई वेंट टू भगवत गीता 100+ टाइम बट नथिंग चेंज इन माई लाइफ। कितना बड़ा क्वेश्चन रेज करता है ना इतनी बड़ी ऑडियंस में, लेकिन गुरु गुरु होता है, बाप बाप होता है। महात्रिया ने उतनी ही ताकत से रिप्लाई दिया इमीडिएटली, वो भी बिना सोचे समझे, माय चाइल्ड, it doesn't matter how many times you go through Bhagavad Gita, definitely nothing will change. If Bhagavad Gita goes through you once, everything will change. ना, अब हम भगवत गीता के ऊपर तो बात नहीं कर रहे, हम इनकम टैक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो as amended by me, it doesn't matter how many times you go through to income tax, nothing will change. But if income tax goes through you once, everything will change. Everything, every challenge that you are facing in your life will be sorted out. जो आपको चीजें बहुत डिफिकल्ट लगती है, ऑडिट पे जाके क्या करे, सडनली सवाल आता है, ऑडिट पे जाके क्या करे, क्या पूछे। कोई बिजनेस कंसल्टेंसी के लिए आपके पास है, क्या बताऊं उसको कि कैसे करना चाहिए बिजनेस या कैसे नहीं करना चाहिए, क्या बताऊं कि वो क्या सही कर रहा है और क्या गलत कर रहा है, कैसे पकड़ू। ये सारे चीजों के सवालों के सारे जवाब यहाँ पे इनकम टैक्स में है, बट यू हैव टू गो थ्रू इट। तो फिर जब मैंने अपने बच्चों को ये बताना चालू किया ये सेंटेंस, तो सर ने उन्होंने मुझे पूछा कि सर देन हाउ इनकम टैक्स विल गो थ्रू अस। गुड क्वेश्चन, नो? यू सेड हाउ मेनी टाइम्स आई गो थ्रू इनकम टैक्स, डजंट मैटर, इनकम टैक्स शुड गो थ्रू मी, सो टीच अस हाउ इनकम टैक्स विल गो थ्रू मी। अब ये कितना डिफिकल्ट सवाल है, सोचो आप, ये तो महात्रिया को भी नहीं पूछा गया था, ठीक है ना? मेरे बच्चों ने मुझे पूछा, मेरे बच्चे इतने टैलेंटेड है, वो महात्रिया प्रो लेवल पे जाते हैं। तो मैंने उसका बहुत ही पोलाइट आंसर दिया जो मुझे समझा। मुझे इनकम टैक्स समझना चालू ही इसलिए हुआ क्योंकि मैं इनकम टैक्स बार बार पढ़ता हूं। वेरी सिंपल आंसर। सो आई रिमेंबर सेक्शंस, नॉट ऑल बट मेजॉरिटी सेक्शंस आई रिमेंबर बाय हार्ट। हाउ? आप लोगों को याद नहीं है, मुझे इनकम टैक्स के सेक्शन याद है। क्यों? मेरे पास एक्स्ट्रा ब्रेन है, इधर से कुछ बाहर आया ऐसा नहीं। तो what you do and what I don't, like what I do and what you people don't do, I read it again and again and again and again almost every day. मेरी दिनचर्या है इनकम टैक्स। आई एम रीडिंग इनकम टैक्स एवरी डे। तो यू हैव टू वेट फॉर दैट राइट मोमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पे आपकी दुनिया बदल जाएगी। वो मोमेंट कब आएगी आपके पास? जब आप उस मोमेंट के लिए रेडी हो।
और आपको उस मोमेंट के लिए रेडी कैसे होना है? टिल द टाइम इनकम टैक्स डजंट गो थ्रू यू, यू हैव टू गो थ्रू इनकम टैक्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, मुझे नहीं पता कितनी बार जाना पड़ेगा। एंड देन देयर विल बी अ टाइम, जो मेरे लाइफ में भी कभी 2015-16 के बाद आया, वेयर एवरी सेक्शन बिकम्स लॉजिकल। देखो ना, अभी मैंने आपको कैसे लॉजिक बताया, 10 ना 10,000 का जो लिमिट है सेक्शन 40A(3) का, कितना सिंपल सा लॉजिक है, ब्लैक क्रिएट्स ब्लैक, व्हाइट क्रिएट्स व्हाइट। ये बोलने के लिए कैसे आता है कि किसी भी किताब में नहीं लिखा गया है, इसको सार बोलते हैं, ये स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल है, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा गया है, बट आई नो दिस इज सार। अब ये कैसे समझना चालू हुआ? बिकॉज आई वेंट थ्रू इनकम टैक्स मल्टीपल टाइम्स। तो आप लोगों को भी अगर इनकम टैक्स में अगर हाथ पकड़ना है, या आप चाहते हो कि इनकम टैक्स आपका हाथ पकड़े, आज मेरा जो भी औकात है, मेरी जो भी इज्जत है, वो किसकी वजह से? नॉट बिकॉज आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इट इज बिकॉज आई एम अ टीचर ऑफ इनकम टैक्स। I earn money because of income tax. I sell income tax to student, I sell income tax to clients. ना, आप अभी जो इतने जोश से काम करने वाले ऑफिस में 300+ ऑडिट आप साइन करने वाले हो, क्यों हमारे पास ऑडिट आ रहे? बिकॉज वी नो इनकम टैक्स। अगर मार्केट में ये मैसेज चला जाएगा तो हमें इनकम टैक्स नहीं आता, तो कोई आपके पास काम लेके आएगा? कोई नहीं आएगा ना। तो डोंट यू थिंक यू शुड ऑल्सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन सम डे कि नहीं यार, सब कुछ प्रिंसिपल के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। बीइंग एन आर्टिकल्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ गुरुकुल, इवन आई शुड नो इनकम टैक्स। लेट्स स्टार्ट विद इनकम टैक्स। मतलब क्या है? इनकम टैक्स ही नहीं पढ़ना है, फिर जीएसटी भी पढ़ना है, फिर अकाउंटिंग भी पढ़ना है, फिर बिजनेस मॉडल भी पढ़ना है, बहुत सारे मॉड्यूल पढ़ने हैं। लेकिन क्योंकि हमने शुरू कहीं से करना है, तो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, क्योंकि वो मेरे खून में है, इनकम टैक्स मेरे अंदर है अब, एंड यू कैन नेवर टेक इट आउट नाउ। मैं मर जाएगा फिर भी इनकम टैक्स के लिए नोन रहेगा, देख लेना, क्योंकि ये वीडियो तो नहीं डिलीट होगा ना मेरे साथ। तो इनकम टैक्स ने मुझे अमर बना दिया है, इमोर्टल बना दिया है। और क्या चाहिए आपको इनकम टैक्स से? तो नेम, फेम, इज्जत, पैसा, सब कुछ इससे आ रहा है। इनकम टैक्स उतना ताकतवर है, जिस दिन आपको वो समझ में आ जाएगा, हाउ रिलीजियसली यू विल स्टार्ट रीडिंग इनकम टैक्स, हाँ, इमीडिएटली आपकी जस्टिन बीबर के गाने सुनना बंद कर दोगे। हाँ, इमीडिएटली आप जो रोज सर्च करोगे ना, वो आप बन जाओगे। व्हाट यू सर्च यू विल बिकम दैट। मैं स्पिरिचुअल कंटेंट रोज सर्च करता हूं तो आई विल बिकम स्पिरिचुअल। आई सर्च इनकम टैक्स का कंटेंट एवरी डे, आई विल बिकम इनकम टैक्स प्रोफेशनल। तो तुम रोज गाने सुन के सिंगर अगर बनने का अगर जर्नी चालू किया है तो बहुत अच्छा, उसमें बहुत ज्यादा पैसा है। लेकिन अगर आपको पता है कि आपको सिंगर नहीं बनना है, तो आपको गाने नहीं सर्च करनी चाहिए। आपको मूवी स्टार नहीं बनना है, तो आपको ज्यादा मूवीज नहीं देखनी चाहिए। योर पैशन शुड बिकम योर प्रोफेशन। आप अपने आप को एंटरटेनमेंट के लिए भी वही देखना चाहिए आपको, जो आपको जो चीज आप बनना चाहते हो। इनकम टैक्स एंटरटेनिंग है, बहुत मजा आता है। वो तो रिकॉर्डेड लाइनें करके मैं अपनी लैंग्वेज को रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूं, अदरवाइज यू डोंट नो इनकम टैक्स में क्या मजा आता है। आप कभी चलो फिजिकल बैच में बैठो हमारे शेटेज इंस्टीट्यूट में कल्याण में, जहाँ पे 100-150 बच्चे बैठे रहते, क्या मजा आता है पता है। तो बहुत एंटरटेनिंग है। स्टैंड अप कॉमेडी से कम कंटेंट नहीं है इसके अंदर, बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर अगेन, एंटरटेनमेंट इज नॉट अ पर्पज इटसेल्फ। हमारा पर्पज है जो हमने चालू किया, वो नॉलेज बेस का है। आपको ताकतवर बनना है, केपेबल बनना है। आप किसी भी क्लाइंट को हैंडल करते हो, आपको देख के उसको लगना चाहिए, अरे कैसे लोग हैं, कितने भारी लोग हैं ये लोग। मेरा बेटा इनकी उम्र का है, लेकिन मेरे बेटे को ये सब नहीं आता जो इसको आ रहा है। घर पे जाके उसका बेटा मार खाना चाहिए आज, अगर आपको कोई क्लाइंट मिलकर गया है तो। हाँ, तो आपको उतना नॉलेजेबल बनना है। मुझे लग रहा है 17-18 महीना डालोगे तो हो जाओगे। मैं आपके ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहता कि 2 दिन में बनो, 6 महीने में बनो। हमने कितने महीने दिए आपको? 18 महीने दिए। लेकिन 18 महीने के बाद आप लोगों को बहुत ताकतवर बनना है, तभी गुरुकुल निर्माण होगा। नहीं तो गुरुकुल का प्रोजेक्ट आप लोग पोस्टपोन कराने वाले हो। तो रिकॉर्डेड लाइन पे ये चीज मैं बता रहा हूं आपको। और ये वीडियो आप लोगों को फिर से चाहिए तो 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद दिखाऊंगा। देखो कि उस टाइम बात हुई थी कि हम इनकम टैक्स नहीं पढ़ रहे, हम गुरुकुल बना रहे हैं। गुरुकुल बना रहे हैं मतलब गुरुकुल के लोगों को ताकतवर बना रहे हैं। तो आप लोगों को ताकत देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो मेरे पास जो है वही मैं दे सकता हूं आपको ना।
मैं अगर आपका गुरु हूं तो मैं आपको क्या ही दे सकता हूं, पैसे होते तो पैसे देता, लेकिन पैसे मेरे पास कम है, तो मैं अभी आपको क्या दे रहा हूं, इनकम टैक्स का नॉलेज दे रहा हूं, क्योंकि वो मेरे पास भरमसाठ है। मतलब आपके कंपैरिजन में आपके पास जितना है उसका अगर प्रोपोर्शन अगर हम निकालेंगे तो हम मेरे पास उससे बहुत ज्यादा है। तो आप मेरे से क्या ले लो, पहले अभी इनकम टैक्स का नॉलेज ले लो। मैं आपको खाली बता रहा हूं कि आपको इंटरेस्टेड रहना है, और फिर इन सब का जो कंक्लूजन है वो कंट्रोल शीट से आपको पता चलेगा कि भैया एक बार इनकम टैक्स पढ़ के नहीं समझता, मान लो ये बात प्लीज, सिंगल रीडिंग से इनकम टैक्स नहीं समझता तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको क्लासरूम ट्रेनिंग बैठनी पड़ेगी, मतलब लेक्चर अटेंड करने पड़ेंगे, मेरे या किसी और के, लेकिन करने तो पड़ेंगे। आपको खुद के क्या बनाने पड़ेंगे, नोट। जब तक आप खुद इनकम टैक्स नहीं लिखोगे आपको इनकम टैक्स नहीं समझेगा। तीसरा आपको क्या करना है, मैंने बोला एक तो कोई तो मॉड्यूल उठा के पढ़ना है। अगर आपके पास कोई एक ऑथर की बुक है तो आप उसको उठा के पढ़ लीजिए, कोई भी चल जाएगी, कोई भी टीचर की चल जाएगी बुक, मुझे कोई उससे लेना देना नहीं है, लेकिन एक ऑथर की कोई तो बुक आपके पास होनी चाहिए। और अगर आपके पास किसी भी ऑथर की बुक नहीं है तो मैंने बताया आपको किसी इंस्टीट्यूट का बुक डाउनलोड कीजिए, उसका पढ़ लीजिए, फ्री में अवेलेबल है सब, जो फ्री में हो वो तो कर लीजिए। इतना करने के बाद आपको इनकम टैक्स समझना चालू होगा, समझेगा नहीं। उसके लिए आपको R1, R2, R3, R4 और R5 इतना करना पड़ता है, 5 रिवीजन करने पड़ते हैं 20-21 डेज, 20 से 21 डेज के गैप से। सेम चैप्टर, समझ रहा है, मैं पूरा एक्ट रिवाइज करने की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा एक्ट रिवाइज करने के लिए टाइम लगता है। बेसिक कॉन्सेप्ट एक 20 से 25 पेज का चैप्टर होना चाहिए आपके नोट्स में। कहां पे 20-25 पेज रिवाइज कर, जो खुद आपने लिखी हुई है, खुद आपने समझी हुई है, लेक्चर अटेंड किया है। आई एम टेलिंग यू, यू शुड नॉट बी टेकिंग मोर देन 45 मिनट टू रिवाइज एवरीथिंग प्रॉपर रिलीजियसली। 45 मिनट से ज्यादा टाइम लगना ही नहीं चाहिए, होना तो 15 मिनट में है, लेकिन चलो मैं ज्यादा आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि 15 मिनट में आप सब कुछ रिवाइज कर लो। 45 मिनट का टाइम में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज होना चाहिए। पढ़ने के लिए 45 घंटे लगने दो, रिवाइज करने के लिए कितने लगने चाहिए, 45 मिनट। और ऐसे कितने रिवीजन मारने आपको, 5। यहां पे जाने के बाद आपको लॉ समझना चालू होगा, और उसके बाद आपको जब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ बाबा ये चैप्टर अभी मेरे को आ गया, तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसके ऊपर मुझे बोलो या हमारे एकेडमिक्स टीम को बोलो कि चैप्टर 1 हो गया है आपका, पढ़ के भी हो गया है, रिवाइज करके भी हो गया है। आप उसकी क्या करवा लो, एग्जाम करा लो, और एग्जाम करोगे तो उसका जो स्कोर होता है, जो उसका परसेंटेज होता है, ठीक है ना, वो आपको यहाँ पे मेंशन करके रखना है। अगर आपका स्कोर लेस देन 50% है तो आपको सच में समझा है क्या वो टॉपिक, नहीं ना। अगर आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, मतलब अगर हमने एग्जाम 30 मिनट का रखा है और आपका 30 मिनट में सॉल्व नहीं हुआ है, तो भी आपको वो समझा है क्या, नहीं हुआ है। तो प्रोफेशनल एग्जाम में पास होने का कान मंत्र क्या है सर, क्या है आपका फॉर्मूला, क्या है, तो हमारा फॉर्मूला है, प्रोफेशनल एग्जाम या कोई भी एग्जाम जिंदगी में कभी भी, पूरी लाइफ का ही है ये, ठीक है ना। लाइफ में अगर आपको सक्सेस चाहिए ना, तो यूं सिंपल सा फॉर्मूला देता हूं, तू भी तेरे स्टूडेंट को दे ये फॉर्मूला, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में होनी चाहिए स्पीड, जो फास्ट है वो आगे जाता है, स्पीड होना ही चाहिए आपके लाइफ में, स्पीड नहीं है तो गेम ओवर। और प्रोफेशनल एग्जाम में तो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो स्पीड की होती है। जब मैं स्पीड बोलता हूं तो लोगों को लगता है राइटिंग स्पीड ना, राइटिंग स्पीड की क्या जरूरत है, थिंकिंग स्पीड की बात हो रही है। कितने क्विकली आपके सामने प्रॉब्लम आता है और कितने क्विकली आप उसको आंसर करते हो। आप रास्ते पे बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, अचानक कोई तो सामने आ गया, अब कितने स्पीड से आप एक्सीलेटर से लेके ब्रेक दबाओगे, वो स्पीड की मैं बात कर रहा हूं। वो पैर के मूवमेंट की स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं, वो सोचना, इधर कमांड जाता है ना कि हिट द ब्रेक, वो कितना क्विकली आपके माइंड में आता है, उस स्पीड की मैं बात कर रहा हूं। आप चपाती बना रहे हो, चाय बना रहे हो, आपका हाथ उस वेसल को, उस यूटेंसिल को लग गया जो गर्म है एकदम, कितना क्विकली आप पीछे लेते हो, आराम से लेते रहोगे ना, शायद मुझे हाथ पीछे लेना चाहिए नहीं तो जल जाएगा, ऐसा होता है क्या। 2 लोगों को पूछ ही लेता हूं, हाथ पीछे लू कि रख लूं उधर ही, कितना क्विकली आप लेते हो, टच हो गया, इतना क्विकली डिसीजन आता है। तो लाइफ में जब भी आपको प्रॉब्लम दिखेंगे उतने ही क्विकली आपको एक्शन लेना है, उस चीज का मैं बात कर रहा हूं। नया दिन है,
नया सिलेबस चालू हो रहा है, मैं कुर्ता भी पहनकर आया हूं। आज अगर महताब सर की बात नहीं होगी तो इंसल्ट हो जाएगा मेरा मेरा जिन्होंने मुझे बनाया उनकी भी बात करता हूं कि स्पीड क्या है वो उन्होंने मुझे सिखाया है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड होना चाहिए, उन्होंने मुझे सिखाया है। हुआ कुछ ऐसा था, नंबर ट्री जो हमारी कंपनी जहां पे मेरा बचपन गया हुआ है, तो नंबर ट्री में फीमेल स्टाफ अपॉइंट होने चालू हुए सेकेंड ईयर से। फर्स्ट ईयर नहीं थे हमारे पास, एक ही थी लड़की, लेकिन सेकेंड ईयर से फीमेल स्टाफ होने अपॉइंट होने चालू हुए। तो नंबर ट्री का तभी ऑफिस छोटा सा ऑफिस था मुंबई में, पुरानी एक बिल्डिंग में हमने ऑफिस लिया था। और सर का बहुत क्लियर विजन था कि हमारे ऑफिस में अटैच टॉयलेट होना चाहिए। मुंबई में अटैच टॉयलेट के ऑफिस ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट दैट वाज हिज कंडीशन कि हमारे ऑफिस में आगे जाके फीमेल स्टाफ होगा तो हमारे ऑफिस में क्या होना चाहिए, अटैच्ड वॉशरूम होना ही चाहिए। जबकि हमारे पास कोई फीमेल स्टाफ था ही नहीं, जब हमने ऑफिस लिया था तभी स्टाफ ही नहीं था, मैं ही था खाली, आई वॉज द फर्स्ट एम्प्लॉय। तो विजनरी देखो कितना है वो। उन्होंने क्या बताया था कि हमारे ऑफिस में फीमेल स्टाफ आएगा तो वॉशरूम होना बहुत जरूरी है। तो हमने वो सा रूम ढूंढा। हो क्या रहा था कि एक दिन मैं काम करते हुए बैठा था, मैं उस ऑफिस का बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, मैं मैनेजर लेवल पे था उस ऑफिस में। लेकिन क्योंकि मुझे लगता था कि ऑफिस मेरा ही है, सर अपनी ही है, तो उस ऑफिस की बाकी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं ही लेता था। तो चाय पे क्लाइंट आना है, चाय लाना है तो मैं लेकर आता था। साफ सफाई अगर करने के लिए आज अगर हाउसकीपिंग का स्टाफ नहीं आया तो मैं जाके ऑफिस साफ करता था। तो सब कुछ मैं करता था जो ये करना चाहिए ऑफिस के काम के लिए। तो लोगों ने अज्यूम कर लिया कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करने की। ऐसा भी होता है कभी कभी, आपको पता नहीं है, अभी भी हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, ऑपरेशन टीम को लगता है कि झाड़ू मारना साफ सफाई करना बिजनेस टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो करते हैं ना रोज, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है। लेकिन लोग मान लेते हैं कि हाँ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बिजनेस टीम को मैंने सिखा के भी रखा है, सिखाने का हमेशा ट्राई करता हूँ कि जब कोई नहीं करता तो आपको करना है, क्योंकि मुझको बचपन से वैसे ही सिखाया गया है। तो हुआ कि एक लेडी, मैं काम कर रहा था चुपचाप कंप्यूटर पे, एक लेडी मेरे पीछे से आया और मुझको डांट दिया उसने बहुत जोर से, इंसल्ट किया मेरा सबके सामने। क्या अक्ल नहीं है क्या तुझको, हाँ कैसे ऐसे होता है। मेरे को समझा नहीं, मैं क्या, मेरी गलती क्या हुई है, पहले बताना चाहिए ना कि मेरी गलती क्या है, पहले डांट देते हो आप मुझको। तो बोलती है वो मैं वॉशरूम में गई थी, तो अभी आप वॉशरूम कर रहे हो और आपके ऊपर से आपके ऊपर पानी गिर रहा है। तो ओवरहेड टैंक लीक था और वहां से पानी गिर रहा है, तो बहुत ही इरिटेटिंग फीलिंग होगी। आप रेडी होके ऑफिस में आए हो सुबह सुबह घर से, और आप वॉशरूम में चले गए, अब चालू भी हो गया वॉशरूम करना, अब उठ के भाग भी नहीं सकते, और ऊपर से आपके ऊपर क्या गिर रहा है, पानी गिर रहा है, लीक हुआ है। तो आपको तो बुरा लगेगा ही। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाहर जाके राम को डांट दो। तो वो लेडी आके मुझको डांट के चली गई कि समझ में नहीं आता तुझे कि पानी लीक हो रहा है। मैं उसी आवाज, अभी इसने मुझको डांटा, मैं इसको तो कुछ नहीं बोल पा रहा हूं, मैं उसी आवाज में मेरे चेयर से उठा, उसी जोश में उठा, उसी गुस्से से उठा और सर के केबिन में चला गया। दरवाजा खोल के मैंने बोला एकदम जोर से, वो बाथरूम लीकेज है, पानी गिर रहा है, लोग मुझको डांट रहे हैं, एकदम जोर से बोल बात। देखो मैं तभी छोटा था, मुझे जज नहीं करना है आपको, मुझे आज भी अक्कल नहीं तो तभी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो मैं जाके सर को डांट दिया मैंने कि वो ऑफिस में बाथरूम में लीकेज है। सर ने बड़ी प्यार से मुझे पूछा, फ्रॉम व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी देन, शुड आई गो एंड रिपेयर दैट। एकदम प्यार से बोला, वो डांटता भी था तो प्यार से ही डांटता था कि एग्जैक्टली मैं उनसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूं कि ये उठे और जाके अभी नल रिपेयर करे। मैंने बोला नहीं। तो बोलते थे मैं क्या करूं फिर, मैंने बोला प्लम्बर को बुलाओ। बोलते बस वही आपको करना है ना, मैं प्लम्बर को बुलाऊंगा तभी भी प्लम्बर ही आएगा, आप प्लम्बर को बुलाओगे तभी भी प्लम्बर ही आएगा। तो आपको जब पता है कि नल लीकेज है तो प्लम्बर को बुलाना है, मुझे आके क्यों बता रहे हो आप। उस दिन मुझे पता चला कि बॉस के पास प्रॉब्लम लेके नहीं जाने, और उन्होंने बोल के भी दिखाया, नेवर कम टू मी विथ ओनली प्रॉब्लम्स, come to me with solutions. I know there are problems in the office. We are a small organization. We don't have everything perfect here. So there might be many issues in this office. So you need to take the responsibility to find the solution. And if you cannot find the solution, then adjust. वो भी बोल के रखा है कि अगर प्लम्बर मिला ही नहीं तब तक क्या करो, एडजस्ट करो, अम्ब्रेला लेके बैठना है तो बैठो, नहीं तो सोल्यूशन ढूंढो।
या तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो एग्जीक्यूट करवा लो, या तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो एडजस्ट कर लो। तो ये उन्होंने मुझे उस दिन सिखाया, मैं भी आपको वही बताने का ट्राई कर रहा हूं कि जब आपके लाइफ में सामने से कोई चैलेंज आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, पर्सनल हो प्रोफेशनल हो कोई भी हो, आप कैसे समझना चाहते हो आप समझो, मैं आपके सामने महताब रख रहा हूं पूरा का पूरा। आपके लाइफ में जैसे ही आपको चैलेंज दिखता है, कितने क्विकली आप उसको रिस्पॉन्ड करके उसका क्या ढूंढते हो, सोल्यूशन में। उस स्पीड की बात कर रहा हूं साहब, ये स्पीड आपके पास होनी चाहिए। जितना डिले करोगे उतना सफर करोगे, ये तो राइट है, सिंपल सा एग्जांपल है। सॉल्यूशन सोचने में जितना डिले करोगे उतना सफर करोगे। आपको फीवर आया है, सॉल्यूशन क्या है, डॉक्टर के पास चले जाओ। इमीडिएट क्या है, डॉक्टर 3 घंटे बाद मिले। इमीडिएटली क्या है, डोलो खा लो, रेस्ट कर लो। आप प्रॉब्लम मत लेकर आओ, क्या लेकर आओ, सॉल्यूशन। अभी अपने को भूख लगने वाली है 10 बजे, बिजनेस टीम को आपका मैसेज जाना चाहिए कि 10 बजे हमारा लेक्चर खत्म होने वाला है, 10:15 बजे उसका दूसरा चालू होने वाला है, बीच में खाली 15 मिनट का टाइम है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले से आप अपने टीम को बता के रखो कि 10 बजे के पहले ब्रेकफास्ट रेडी होना चाहिए। क्या वो आज नहीं सोचना था, वो क्या कभी सोचना था, कल। आज नहीं समझ में आ रहा तो इडली लेकर आने बोलो। तो उसको इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि आपको जब बताया जाता है कि क्या लाना है तो वही लाना है, जब आपको नहीं बताया गया कि क्या लाना है तो क्या लाना है वो भी उसके पास पता होना चाहिए ना, तभी तो वो डिसीजन ले पाएगा। क्या आज मुझे बताया नहीं है लोगों ने कि पोहा लाना है, तो मैं जाके इडली लेकर आएगा डिफॉल्ट। कल मैंने क्या बोला शाम को, जब स्टाफ को नहीं समझ रहा है शाम का नाश्ता क्या होना चाहिए, तो क्या लेकर आओ, वड़ा पाव लेकर आओ। तो सोचते मत बैठो, एग्जीक्यूट करो चीजों को। कितना क्विकली आप एग्जीक्यूट करते हो, मुझे 2008 में साहब ही सिखाया गया लेसन। सोचो आज 2023 है, मुझे आज भी याद है वो दिन कि मुझे प्रॉब्लम ओरिएंटेड माइंडसेट से सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट बनाया गया है। तो मैं आप लोगों से भी वही एक्सपेक्ट करता हूं, एग्जाम का सवाल होने दो या जिंदगी का, प्रॉब्लम हमेशा आते रहेंगे, चैलेंजेस हमेशा आते रहेंगे। आपको इमीडिएटली क्या कौन सा बनना है, क्या करना है, सॉल्यूशन। प्रॉब्लम आपकी हो तभी भी आपको सॉल्यूशन ढूंढना है, प्रॉब्लम किसी और की हो तभी भी, क्योंकि इनकम टैक्स की नोटिस जिसके घर पे आई है उसको अभी सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। उसके घर पे नोटिस आई है इनकम टैक्स की, तुम्हारे घर पे जरा 2 मिनट इमेजिन करो पापा को अभी इनकम टैक्स वाले लेके बैठे हैं, कैसे लगेगा आपको अभी। 2 मिनट फील तो करो, मुझे पता है आपके पापा इतने अमीर नहीं है, लेकिन इमेजिन करो योर डैडी इज रियली रिच पर्सन, व्हाइट और ब्लैक दोनों है उनके पास, और अभी घर पे इनकम टैक्स है उनके। प्रॉब्लम है, किसको फोन करेंगे, डॉक्टर को फोन करेंगे, इंजीनियर को करेंगे, लॉयर को करेंगे, किसको फोन करेंगे अभी पापा, सीए को करेंगे, मतलब आपको करेंगे ना। आप क्या बोलोगे फिर, इनकम टैक्स आएगी आपके घर पे, बता ही रहा था आपको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपने ये सब, अच्छा आपके घर पे ब्लैक भी है, मेरी तो फी नहीं दी आपने 3 साल से, अब ये सब करने का टाइम है क्या। अब क्या चाहिए उस क्लाइंट को सामने, उसको सॉल्यूशन चाहिए। आपसे वो इतना एक्सपेक्ट करता है कि सर आप कुछ मत कीजिए, आप कोऑपरेट कीजिए डिपार्टमेंट के साथ, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा, सर मैं आ ही रहा हूं वहां पे, यू जस्ट कोऑपरेट विद द डिपार्टमेंट, वॉट एवर दे आर आस्किंग डोंट लाई, जो भी आपके पास है सब बता दीजिए उनको, एवरीथिंग एल्स विल बी हैंडल बाय मी। या आपको वो भी नहीं जम रहा है तो आप उनको बोल दीजिए सर मुझे आप बैठिए चाय नाश्ता कीजिए, हमारे सीए साहब आ रहे, 15-20 मिनट लगेंगे, आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, तब तक सर आप उनको टाइम दीजिए, उन्होंने बोल के रखा है। और मैं भी चाहता हूं कि वो अगर रहेंगे तो उनका प्रोफेशनल ओपिनियन बहुत मैटर करता है, ऐसा उन्होंने बोला है। तो मैं उनका वेट करूंगा, आपके जो भी सवाल है सारे सवालों के मैं जवाब देने के लिए रेडी हूं, बट आई वांट माय सीए टू बी विथ मी इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन, इसके पहले मेरे पास कभी इनकम टैक्स का रेट नहीं आया था, आप पहली बार आए हो। वैसे तो आप आए हो तो इतना तो पता चल गया कि हमारे घर पे लक्ष्मी है, क्योंकि बिना लक्ष्मी के इनकम टैक्स आपके यहाँ पे नहीं आता। तो यू आर वन ऑफ दैट लकी पर्सन इन इंडिया जिनके घर पे सच में लक्ष्मी है। तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए इमीडिएटली, प्रॉब्लम दिखते ही क्या आना चाहिए, सॉल्यूशन। एग्जाम में भी क्या होना चाहिए, सामने क्या पड़ा होता है, प्रॉब्लम, इमीडिएटली आपके माइंड में क्या आना चाहिए, ये सॉल्यूशन आने के लिए जितना टाइम लगता है वो टाइम ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए। जिस दिन ये टाइम कम हो जाएगा उस दिन आपको लाइफ में सक्सेस मिलना चालू हो जाएगा। उस स्पीड की बात कर रहा हूं। आई होप आई एम क्लियर विद द वर्ड स्पीड, स्पीड ऑफ थॉट, स्पीड ऑफ सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड, ठीक है ना। अति घाई संकटात नहीं, मराठी में बोलते हैं हम लोग। जब भी आप लाइफ में स्पीड बढ़ाओगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा ना।
आप गाड़ी स्लो चलाते हो तो एक्सीडेंट होने के चांसेस कम होते हैं, गाड़ी आप स्पीड बढ़ाते हो तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वैसे ही एग्जाम में जब आप प्रॉब्लम देखते हो और प्रॉब्लम को ज्यादा सोचे भी ना, इमीडिएटली अगर आपने उसका सॉल्यूशन निकालना चालू किया तो स्पीड तो मेंटेन होगी आपकी, लेकिन डायरेक्शन गलत हो सकता है। लाइफ में भी ऐसे होता है। एक मोमेंट आती है जब आप टेम्पटेशन में चले जाते हो। आप अगर स्मोकर हो तो एक मोमेंट आती है आपके लाइफ में कि आपको लगता है कि सिगरेट उठा लूं मैं हाथ लगा के। अभी मोमेंट ऑफ टेम्पटेशन है, अब मैंने स्पीड बोला तो फटक से उठा के फटक से पी लेके फटक से खत्म करता हूं। ये स्पीड आपने की, लेकिन ये डायरेक्शन गलत था। अभी आपको टाइम देना है, आपको पता है कि इमीडिएटली जो मेरे माइंड में आ रहा है वो टेम्पटेशन है, मुझे रोकना पड़ेगा मेरे टेम्पटेशन को, मुझे मन भटकाना पड़ेगा, मुझे कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा, तब मेरा मन यहां से चला जाएगा। क्योंकि खाली स्पीड इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट डिसीजन लेना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ डिसीजन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो जो सेकेंड वर्ड आता है हमारे इक्वेशन में, दैट इज ए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी मतलब एग्जाम में आप एक्यूरेसी की बात करते हो तो वहां पे करेक्टनेस ऑफ आंसर बोला जाता है। बहुत स्पीड से मैंने गलत सेक्शन लिखा, क्या मतलब है? तो जब आपको पता है कि आप स्पीड हद से ज्यादा बढ़ा दोगे तो गलत करने वाले, जो आपको पता है ये चीज, तो आपको क्या कम करना चाहिए? फिर थोड़ी स्पीड को कम करना चाहिए और एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करना चाहिए। आप समझ रहे हो ना, ये सीसॉ वाला गेम हो गया। अभी सीसॉ वाला गेम समझता है ना, ये एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस वाला गेम हो गया। एफिशिएंसी मतलब स्पीड, एफिशिएंसी मतलब क्या? स्पीड। स्पीड बढ़ाना चाहोगे, किसी भी चीज की स्पीड बढ़ानी चाहोगे तो क्या कम हो जाती है? इफेक्टिवनेस, उसकी क्वालिटी कम हो जाती है ना, क्वालिटी कम हो जाती है। और क्वालिटी बढ़ाना चाहोगे तो स्पीड कम होती है। मैं इनकम टैक्स आपको दो तरीके से पढ़ा सकता हूं, इफिशिएंटली भी और इफेक्टिवली भी। कौन सा रास्ता आप चुनना चाहते हो मुझे बताओ। बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूं, एक एक लाइन पढ़ा सकता हूं, एक एक वर्ड पढ़ा सकता हूं, एक लाइन 4 बार बोल सकता हूं, इफेक्टिव हो जाएगा बहुत, लेकिन 3 साल लगेंगे इसको। अब बोलोगे यार यार 3 साल तो नहीं है मेरे पास इनकम टैक्स पढ़ने के लिए, तो जल्दी जल्दी पढ़ाता हूं, 40 घंटे में पढ़ा दूंगा, पूरा कवर करूंगा। बहुत एफिशिएंटली पढ़ा सकता हूं मैं, 40 घंटे में 50 घंटे में पूरा इनकम टैक्स पढ़ा सकता हूं मैं। पढ़ाया है मैंने, केरला में लेक्चर लिए मैंने, 7 to 7 बैठना पड़ेगा आपको रोज, 5 दिन में इनकम टैक्स खत्म। रोज 12 घंटे, 12 घंटे मतलब 7 to 7, लंच ब्रेक, टी ब्रेक और इनकम टैक्स। 5 दिन 50 घंटे में 12 घंटे आपको देने, उसमें से 10 घंटा इफेक्टिवली बैठना है, 50 घंटे में पूरा इनकम टैक्स खत्म। बोलो कौन सा वाला चाहिए? 3 साल वाला चाहिए कि 50 दिन 50 घंटे वाला चाहिए? ना ये चाहिए ना वो चाहिए। थोड़ा अच्छा भी चाहिए लेकिन उतना भी अच्छा नहीं चाहिए, फास्ट चाहिए लेकिन उतना भी फास्ट। बस ये जिस दिन आप बैलेंस करना सीखोगे ना, ये सीसॉ का गेम है, एक बढ़ाने जाओगे तो दूसरा नीचे चला जाता है, दूसरा बढ़ाने जाओगे तो पहला नीचे चला जाता है। तो हमें ये बैलेंस करने आना चाहिए, क्वालिटी को मेंटेन करने आना चाहिए, लेकिन स्पीड के साथ। और फिर कभी कभी लाइफ में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करनी होती है, स्पीड बहुत बढ़ानी होती है। एग्जाम में वो लास्ट के 15-20 मिनट होते हैं जहां पे आप क्वालिटी का सच में नहीं सोचते, वहां पे खाली आपके हाथ में एक जादू आ जाती है, मतलब बढ़ते जाते हो आप। आखिरी 15 मिनट में चलेगा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज, स्पीड करो आप, लेकिन पहले 15 मिनट में क्या करना चाहिए था आपको? पहला आंसर जो आप सॉल्व करने वाले उसमें आपको क्या मेंटेन करना चाहिए था? क्वालिटी, एक्यूरेसी। तो समझ में आ रहा है ना आपको क्या करना है एग्जाम में? एग्जाम में जो करोगे जिंदगी में भी क्या करना चाहिए? दिन की शुरुआत में कैसा शुरू ही फास्ट काम करोगे क्या? दिन की शुरुआत अच्छे से करो, क्वालिटी से करो, मेडिटेशन से करो, नॉलेज से करो, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ है। फिर ऑफिस चालू होगा, शुरू के अच्छे क्वालिटी के काम पहले कर लो, फिर आपको पता है ये क्लाइंट हरामखोर है, ये तो ज्यादा पैसे देता नहीं है, उसका लास्ट क्लास में करो, फास्ट कर लो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ कुछ लोगों का अच्छे से करो, कुछ लोगों का थोड़ा फास्ट करो, खराब मत करो किसी का, उनका बहुत अच्छे से करो और कुछ लोगों का फास्ट करो। फास्ट करने जाओगे तो शायद क्वालिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, थोड़ी चलती है, पूरी नहीं चलती, क्योंकि पूरी करोगे तो नोटिस आएगी उसको, फोन आप ही को आना है फिर ना। और एक लाइन का आप खराब काम करो 50 लोगों को जाके बताता है, एक लाइन का अच्छा करो तो 50 लोगों को जाके ये नहीं बताता कि मेरा सही अच्छा है, लेकिन जिसका खराब करोगे ना वो 50 लोगों को जाके जाके बताएगा कि मेरा सीए खराब है।
और इसके पास आप काम मत दो। इसने ऐसा काम किया कि इनकम टैक्स के 1 साल में 4 नोटिस आ गए ना, अब तक आई नहीं थी। उसको क्या बताया कि अब तक इनकम टैक्स का पोर्टल अपडेट नहीं हुआ था, अभी इनकम टैक्स का पोर्टल अपडेट हो गया है। हमारी कोई गलती है ही नहीं, आपने इतने सालों से जो पाप करके रखा है, कभी ना कभी तो पे करना पड़ेगा आपको, कॉम्प्रोमाइज आपको भी करना पड़ेगा थोड़ा जिंदगी में। तो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्पीड। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? एक्यूरेसी। ये दोनों जब मेंटेन होते हैं ना, तीसरा कॉम्प्रोमाइज हो ही जाता है, एग्जाम में भी और जिंदगी में भी, एंड दैट इज प्रेजेंटेशन। आप समझ रहे हो ना? फास्ट काम करना है, एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है, तो फॉर्मेटिंग खराब हो जाती है क्वेश्चन की, आंसर की। नंबर आपने परफेक्ट रखे, वो एक्यूरेट है, बैलेंस शीट आपने फास्ट भी बनाई है, वो भी अच्छा काम किया, लेकिन देखने वाले को मन ही नहीं कर रहा है उसको देखने का। फॉर्मेटिंग अच्छी, नंबर एकदम एक्यूरेट है, बता रहा हूं, नंबर नंबर गलत नहीं है आपके, लेकिन प्रेजेंटेबल नहीं है ना। लास्ट अभी एजीएम में संकेत सर बोल रहे थे, तुम लोग अच्छे लोग हो, तुम्हारी सोच अच्छी है, तुम्हारी बॉडी अच्छी है, खाली तुम कपड़े अच्छे नहीं पहनते बस। वो थर्ड पार्ट है, समझ में आ रहा है? अब ऑफिस में आते हो अच्छी थॉट से आते हो, आपको काम करना है, आपको सीखना है, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्लाइंट को नहीं समझता ना, तो टी शर्ट पे आया हुआ है, शॉर्ट्स पे आया हुआ है ऑफिस में, तुझे देख के नहीं लग रहा कि तू प्रोफेशनल स्टूडेंट है या प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। वो कौन सी बात कर रहे थे? वो प्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे, कि प्रेजेंटेशन भी उतना ही जरूरी होता है। नहीं होता तो मैं यहाँ पे इक्वेशन में लिखता क्या? कुछ लोग बोलते हैं कि बंद कर दो एसी, बता दो ना, हिमालय हो गया बता देने का, क्योंकि मैं गर्म रहता है, मैं बात करता है तो ठंडी तुम लोगों को लगती है। तो थर्ड चीज एग्जाम में जो बच्चे आजकल बहुत लाइटली लेते हैं प्रोफेशनल एग्जाम में, दैट इज प्रेजेंटेशन। पेपर कंप्लीट करने में उनका पूरा ध्यान होता है, एक्यूरेसी पे भी ध्यान होता है, लेकिन तीसरी चीज कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, दैट इज प्रेजेंटेशन। अब ये सीसॉ से एक डिफिकल्ट गेम हो गया, अब ये सर्कस हो गया। हाथ भगवान ने 2 ही दिए, लेकिन बॉल 3 दिए हुए, और 3 बॉल के साथ खेलना है, समझ रहा है ना सर्कस? एक उड़ाओ तो दूसरा पकड़ना है, जब तक एक हवे में है तब तक दूसरा उड़ाना है, तीसरा पकड़ना है, और ये चलते रहेगा ऐसे, क्योंकि जरा भी रुक जाओगे तो एक बॉल तो नीचे गिरी जाएगा। और कभी कभी पैनिक होने के बाद क्या होता है, एक छोड़ दो, वो एक तो गिरी गया, उसको पकड़ने के लिए दूसरा भी फेंक दिया, और हाथ में तीसरा जो उड़ाना था उड़ाया नहीं, वो तो नहीं पकड़ के रखा है। इसको बोलते हैं पैनिक मोमेंट इन लाइफ। समझ में नहीं आता। ये 3 बॉल के अलग अलग नाम आप देख सकते हो, एक फैमिली लाइफ है, एक प्रोफेशनल जिंदगी है, एकेडमिक्स है। एकेडमिक्स पे फोकस करना चालू करो, फैमिली लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, फैमिली पे फोकस करना चालू करो, प्रोफेशनल लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। मतलब जिंदगी में ऐसे 3 अलग अलग बॉल हमेशा आते ही रहेंगे, हमेशा, रोज आते हैं, लाइफ है तो है ही ना, हम ह्यूमन इसलिए तो है ना, इसलिए तो हम लोग गधे लोग नहीं है, इसलिए तो हम लोग घोड़े लोग नहीं है कि घोड़े का एक ही काम है, चारा खाना है और भागना है। इसलिए तो आप गधे नहीं हो, इसलिए तो हम एनिमल नहीं हो, इसलिए तो हम ह्यूमन है ना, प्रीमियम स्पेशीज है। क्यों? बिकॉज वी कैन डू एक्चुअली मल्टीपल थिंग्स एट अ टाइम, क्योंकि हमारा ब्रेन उतना केपेबल है। तो आपके जिंदगी में 3 चीजों का गिफ्ट आपको मिलना है। अब मैंने आपको बता तो दिया कि आपको क्या आना चाहिए, ये आउटकम है, एग्जिट है, ये रिजल्ट है आपका, जो सैप के थ्रू आएगा, स्पीड, एक्यूरेसी, प्रेजेंटेशन, एग्जाम में भी। लेकिन आपको ये भी तो उतना ही, मैं गुरु हूं आपका, ये तो आपको भी पता है। ये क्या बता कि क्या ही कर लिया मैंने, आपको पता था आपकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा पैसा कमाना है तो ज्यादा काम करना पड़ेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अभी रास्ते पे पड़े हुए पत्थर उठाओ मैं, क्योंकि ज्यादा काम करना है। अरे क्वालिटी किधर है? तो एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली काम किया, ज्यादा काम किया, बहुत स्पीड से किया, लेकिन किसी को बताया नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, मतलब मार्केटिंग नहीं की, प्रेजेंटेशन नहीं किया। मेरा बिस्किट पार्ले जी से अच्छा है, लेकिन कोई खा ही नहीं रहा है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि पार्ले जी से भी अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में आया हुआ है ना। वैसे मार्केट में, मार्केट 2 तरीके का होता है, पता है ना आपको विनायक सर? एक होता है ब्लू ओशन, और एक होता है रेड ओशन ना। अब ये रेड नहीं है, लेकिन मान लो रेड है। एक होता है ब्लू ओशन और एक होता है रेड ओशन। ब्लू ओशन मतलब क्या? हाई कंपटीशन या लो कंपटीशन? बोलो। लो कंपटीशन।
ठीक है ना। और रेड ओशन मतलब बहुत हाई कंपटीशन, ठीक है ना। तो हमारे सीए के धंधे में ये बिग फोर है। बिग फोर समझ में आता है आपको? जो इंटरनेशनल 4 बड़ी कंपनी है ना, वो ये है बिग फोर। और रेड ओशन मतलब जो ये दुनिया की बाकी सारी सीए फर्म है ना, कितनी रहेंगी? लाखों रहेंगी। बिग फोर में तो 4 ही लोग हैं। स्मॉल्स में कितने हैं? 4 लाख होंगी, 3 लाख होंगी। कंसल्टेंसी फर्म सीए सीए में, सीएस मिला के 3 से 4 लाख होनी चाहिए मार्केट में। तो ये 3 लाख है और यहां पे 4 ही है। हमें कहां रहना है? 4 में जा नहीं सकते, 100-150 साल लग जाते हैं। हमें ना यहां रहना है ना हमें वहां जाना है। मतलब यहां जाने की इच्छा तो सबकी होगी, लेकिन जाना इतना आसान नहीं है। तो हमें इनसे उठ के यहां आना है। ब्लू ओशियन और रेड ओशियन के बीच में एक ओशन होता है जो ट्रांजिशन का ओशन होता है। समझ में आ रहा है ना? जो पीरियड, कौन सा पीरियड होता है? ट्रांजिशन, जहां पे आप यू आर नाइदर बिलोंगिंग टू रेड ओशन नॉर यू आर पार्ट ऑफ ब्लू ओशन। मतलब तुमने कंपटीशन को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी तुम बाप नहीं बने हो मार्केट के। हम वहां की फर्म है। एजुकेशन में भी हम यहां पे ही है। हम एकदम कचरा वाला एजुकेशन नहीं पढ़ा रहे, हम एकदम प्रीमियम वाला भी नहीं पढ़ा रहे। हम प्रीमियम से कम और कचरे से अच्छा पढ़ाने का ट्राई कर रहे हैं। तो ये आम जिंदगी हो गई। रेड ओशन मतलब जिसमें अपने 142 करोड़ में के 140, मतलब 9% में बात करता हूं, 99.99% यहां पे है। ठीक है ना। जो ऑर्डिनरी जिंदगी जीते हैं, उठते हैं मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे काम करते हैं, संडे सोते, फिर मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे काम करते हैं, वो तो फिर भी अच्छे हैं। कुछ लोग तो ऐसे जो मंडे टू संडे, संडे टू मंडे सो ही रहे। उनको तो इंसान बोलना भी नहीं चाहिए, उनको तो एनिमल ही बोलना चाहिए। वो तो कंपटीशन में भी नहीं है। ओशन बिशन रहने दो, वो घर पे ही है। वो ना रेड में आए ना ब्लू में आए, मार्केट में ही नहीं है। तो एज ए इंडिविजुअल आप भी सोचो, आप कहां पे हो? आप यहां पे हो अभी। 99.99 लोगों से आप बिलोंग करते हो। आपको यहाँ पे कौन है? यहाँ पे 0.0001%, मतलब एकदम कम परसेंटेज रहते हैं जिनको सक्सेसफुल लोग बोले जाते हैं, वो यहाँ पे रहते हैं। तो हमें कौन से बनना है? हमें ना ही 0.0001 वाला बनना है अभी इमीडिएटली, ना ही हमें 99.99। तो हमें इसमें बीच वाले ओशन में रहना है, जो ट्रांजिशनल ओशन है। कि हम ऑर्डिनरी तो नहीं है, लेकिन हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं बने। ऑर्डिनरी से थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं ताकि एक दिन हम भी क्या बन जाए? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो इसलिए आपको ज्यादा घंटे डालने पड़ेंगे प्रिपरेशन में। आपको नींद कम करनी पड़ेगी। आप यंग हो, आप 50-60 साल के बुढ़े नहीं हो। मैंने बोला 3 घंटा पढ़ाई करनी है आपको रोज, तो आपको सोचना है कि 6 कैसे करूं, क्योंकि क्या बढ़ानी है मुझे? स्पीड। स्पीड बढ़ते कैसी है? प्रैक्टिस करके। स्पीड बढ़ाने का तरीका क्या? आपको ज्यादा क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। गाड़ी फास्ट कौन चला सकता है? जो पहली बार चला रहा है वो। तो पहला और आखिरी एक ही हो जाएगा उसका। लेकिन जो फॉर्मूला 1 कार वगैरह जो चला रहे हैं, वो 300 किलोमीटर पर आवर, 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, जो अपने गाड़ी के इंडिकेटर पे भी नहीं है। अपना टॉप 180 व 200 के आसपास होता है। उधर तो हम जाते ही नहीं कभी। अब तो 100 ही क्रॉस कर ले तो अपनी गाड़ी होना चालू हो जाती है। तो जो 200 पे 300 पे गाड़ी चला रहा है, उसने क्या किया है जो हमने नहीं किया है? बताओ। प्रैक्टिस की है। एक ही चीज की है, लेकिन बहुत अच्छे से की है, कि वो फॉर्मूला 1 कार चलाता है। प्रैक्टिस करनी है आपको। तो आप किस चीज की प्रैक्टिस करोगे? स्विमिंग की ना, क्योंकि अपने को बेस्ट स्विमर बनना है। नहीं, साइकिल चलाने की करते हैं, बच्चे पैदा करने की कर लेते हैं। किस चीज की प्रैक्टिस करोगे आप? नहीं, स्टडीज तो प्रैक्टिस होगी, लेकिन किस चीज की स्टडी करोगे आप? बताओ। जो आपको बनना है, तो आपको पहले, सबसे पहले किस सवाल का आंसर देना है कि हमें लाइफ में एक्चुअली बनना ही क्या है। जैसे मुझे गुरुकुल बनना है, तो मैं रोज उसकी किस चीज की प्रैक्टिस करूं? गुरुकुल बनाने की, गुरुकुल निर्माण की। तो अभी कर क्या रहा हूं? वही करने का ट्राई कर रहा हूं ना। आज आप 400 लोग नहीं हो, लेकिन कभी तो हमारे गुरुकुल में 400 लोग बैठे रहेंगे और मेरा सेम स्पीच
तभी रिपीट होगा ना, तभी ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। तो मैं उस चीज की क्या कर रहा हूं, प्रैक्टिस। जब मैं सीएफएम की बात कर रहा हूं तो हम एक अच्छे सीएफएम बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब हम एकेडमिक्स की बात करते हैं तो हम एक अच्छी एकेडमी बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब हम पिकनिक पे जाते हैं तो हम अच्छे से एक्सप्लोर करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो भी हम करने का ट्राई कर रहे हैं उसमें हम अच्छा बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल पे आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा ना कि आपको क्या बनना है। तो कोई बोलना चाहिए कि मुझे अच्छा टीचर बनना है, तो उसको कौन सी चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अच्छे टीचर की। कोई बोलना चाहिए कि मुझे अच्छा कंसल्टेंट बनना है, सीए सीएमए सीएस तो डिग्री हो गई, करना क्या है, कंसल्टेंसी। तो आपको किस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कंसल्टेंसी की। क्या हमारे पास वो फैसिलिटीज है जो आप बनना चाहते हो उसकी, एटलीस्ट जो ढांचा है वो ढांचा बना के रखा है हमने, प्लेटफॉर्म बना के रखा है कि जिसको टीचर बनना है उसको टीचर की प्रैक्टिस करनी मिलेगी, जिसको कंसल्टेंट बनना है उसको कंसल्टेंसी की प्रैक्टिस करनी मिलेगी, जिसको ह्यूमंस को मैनेज करना है उसको ह्यूमन रिसोर्सेस लाके दिए है, जिसको पैसा सीखना है कि पैसा कैसे मैनेज होता है उसको पैसा मिलता है। मतलब हमने क्या किया है, गुरुकुल ने क्या किया है, हमने उन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बनाने का काम किया है जिनको वो बनना चाहते हो। हाँ, तो आप सीए बनना चाहते हो, सीए बन मतलब एक्चुअली कंसल्टेंट बनना चाहते हो, तो कंसल्टेंसी में खाली एकेडमिक नॉलेज होना चाहिए आपके पास, किताबों का नॉलेज होना चाहिए कि प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, थ्योरी की प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली तो करना वही है। तो हमने भी क्या बोला, 4 घंटा थ्योरी और 8 घंटा प्रैक्टिकल, 12 ही घंटे होते हैं, अभी भी 12 घंटे आपके पास बचते हैं। इन 12 घंटे में आप क्या करते हो गुरुकुल डिसाइड करता है, बचे हुए 12 घंटे में आप क्या करते हो आप डिसाइड करते हो। 50% तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन है, 50% हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो हमने अगर 50% हमारा जेन्यूनली डाला तो बचा हुआ 50% आपको नहीं लगता आपको भी उतना ही जेन्यूनली डालना चाहिए ताकि आप आगे चले जाओ। तो प्रैक्टिस आपको बढ़ानी पड़ेगी उस चीज की जो आप बनना चाहते हो। हमने तो आपको नाम भी बता दिया, आपके फ्यूचर के नाम क्या होंगे। आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, आप चीफ बिजनेस ऑफिसर हो, आप चीफ रिसोर्सेस ऑफिसर हो, हमने नाम तक दे दिए। मतलब आपको इतना क्लैरिटी हमने दिया कि भैया ये बनना है आपको, तो अभी वो बनने के लिए जो जो करना पड़ता है करो। आपके पास 18 महीने हैं और नहीं करेंगे तो कुछ नहीं, 12 महीने और ऐड करेंगे, फिर और 1 साल से प्रोजेक्ट और आगे जाएगा, इफ यू विश दैट टू हैपन। कल मैं सदगुरु का एक वीडियो देख रहा था जिसमें G20 समिट के ऊपर सदगुरु ने बात किया। उस लेडी ने पूछा कि आपको क्या लगता है कि हमारा देश कहां जा रहा है। उन्होंने बोला हमारा देश राइट डायरेक्शन में जा रहा है। द ओनली प्रॉब्लम इज पेस, पेस मतलब स्पीड। हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं लेकिन हम स्लो जा रहे हैं एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। वो लोग भी राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं जो डेवलप नेशन है। फिर अफगानिस्तान वगैरह भी है, वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, वो भी स्पीड से जा रहा है। बट देयर आर सम कंट्रीज, जापान है, रशिया है, चाइना है, दे आर इन द राइट डायरेक्शन और बहुत स्पीड से जा रहे हैं। हम लोग भी राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, वी आर ऑल्सो प्रोग्रेसिंग इकोनॉमी, लेकिन हम लोग स्लो प्रोग्रेस कर रहे हैं। थोड़ा हमको क्या बढ़ाने की जरूरत है, स्पीड। अब देश कैसे स्पीड बढ़ाएगा, देश का कोई बटन है क्या, नहीं, सिटीजन्स का बटन होता है ना। आप लोगों की स्पीड बढ़नी चाहिए ना। आपको सक्सेसफुल 10 साल के बाद बनना है तो देश भी सक्सेसफुल 10 साल के बाद बनेगा। आज अब 2 साल में अगर आप सक्सेस लेकर आओगे तो 2 साल में देश सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि आप सबका इकोनॉमी, मैंने इकोनॉमिक समझा, आप सबका इनकम बढ़ेगा। आप क्या बढ़ाओगे, इमीडिएटली एक्सपेंस बढ़ाओगे। आप एक्सपेंस बढ़ाओगे, मार्केट में डिमांड जाएगी, जितनी डिमांड जाएगी उतना वहां पे प्रोडक्शन बढ़ेगा, उतनी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। मतलब देश को बड़ा करना है कि नहीं करना है वो तो आप लोगों के हाथ में हो गया। तो आपके हाथ में तो देश बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपने आप को नहीं बना पा रहे हो, तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। कौन सी स्पीड, अगेन सोचने की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और सोचने की स्पीड बढ़ाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। किसी महान इंसान ने किसी दूसरे महान इंसान को पूछा कि हाउ कम यू ऑलवेज टेक राइट डिसीजन, आपने सुना है वो बात, हाउ इज इट पॉसिबल दैट यू आर टेकिंग एवरी टाइम यू आर टेकिंग द राइट डिसीजन। तो जो दूसरा वाइज इंसान था उसने बोला बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस, थ्रू माई एक्सपीरियंस आई एम टेकिंग दोज डिसीजंस व्हिच आर टर्निंग इनटू अ राइट डिसीजन। डिसीजन लेने के टाइम पे नहीं पता चलता कि वो रॉन्ग डिसीजन है कि राइट डिसीजन है, उसके रिजल्ट से पता चलता है कि वो राइट था। तो उसने बोला आई हैव इनफ एक्सपीरियंस टू टेक दिस काइंड ऑफ डिसीजन व्हिच आर टर्निंग इनटू माय बेनिफिट्स। ठीक है ना, तो मैं राइट डिसीजन ले पाता हूं। जैसे अगर वॉरेन बफेट अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है तो वो स्टॉक ग्रो करता है। तो वॉरेन बफेट को कैसे पता चलता है कि कौन सा स्टॉक ग्रो करना है, बिकॉज वॉरेन बफेट के पास उतना क्या है, एक्सपीरियंस है। तो थ्रू एक्सपीरियंस इज टेकिंग द राइट डिसीजन।
तो जो दूसरा वाइज मैन था उसने सवाल पूछा, देन हाउ डू यू गेट दैट एक्सपीरियंस? तो उस सेकेंड वाइज इंसान ने फिर आंसर दिया, थ्रू द आउटकम ऑफ रॉन्ग डिसीजंस। तो राइट डिसीजन अनुभव से आता है, अनुभव गलत डिसीजन से आता है। और गलत डिसीजंस लेने के लिए आपको एक्शन में रहना बहुत जरूरी होता है। आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है पता है? आप अभी तक एक्शन में आए नहीं हो। एक्शन में आए नहीं हो तो आपको आप डिसीजन ही नहीं लेते, और क्योंकि आप डिसीजन ले ही नहीं रहे हो, वो सही है कि गलत है वो तो पता ही नहीं चल रहा है। जिस दिन आप इनफ गलत डिसीजंस लेके आना, आपका एक अनुभव जमा हो जाएगा, उसके बाद जब आप डिसीजंस लेना चालू करोगे तो आपके डिसीजंस रॉन्ग टू राइट कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जितना क्विकली आप डिसीजंस लोगे उतनी क्विकली आपको पता चलेगा कि वो राइट था कि रॉन्ग था। तो आज सुबह आप में से जो लोग यहाँ पहुंचे उन्होंने एक डिसीजन लिया कि आज सुबह उठते और यहाँ जाते हैं। जो यहाँ नहीं पहुंचे उन्होंने भी एक डिसीजन लिया है ना, उन्होंने सोने का डिसीजन लिया है कि घर पे बैठ के सोते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, ठंडी भी आज मजेदार है, बेड भी गर्म हो चुका है, मजा ही आ रहा है बस। दोनों ने डिसीजन लिए है। लाइफ किसकी बदलेगी? जिसने उठने का डिसीजन। तो उठने का डिसीजन सही डिसीजन होता है कि गलत डिसीजन होता है? ये आपको अनुभव आया आज, या आज अगर आपको अनुभव आया तो आपको कल कौन सा डिसीजन लेना चाहिए? जब आपको अनुभव आएगा कि आप राइट डिसीजंस लोते हो तो राइट चीजें आपके साथ होनी चालू हो जाती है, गलत डिसीजन लोगे तो गलत चीजें होनी चालू होती है। तो फिर आपको पता चलता है कि मैं जितने जल्दी राइट डिसीजंस लूंगा, और खाली डिसीजंस नहीं उसको इंप्लीमेंट भी करूंगा, उतनी जल्दी मेरी जिंदगी बदलते जाएगी। तो इसकी स्पीड आपको बढ़ानी चाहिए राइट डिसीजंस की कम करनी चाहिए? बढ़ानी चाहिए। तो जिस दिन आप अपनी स्पीड बढ़ा दोगे अच्छा लगेगा मुझे। लेकिन फिर वही बात होगी कि स्पीड बढ़ा दोगे तो फिर क्या आएगा? क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी कि सब करना है सर, बॉडी भी बनाना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करनी है, हेल्दी भी रहना है, वेल्दी भी बनना है। सब एक टाइम पे नहीं होता, कुछ ना कुछ तो क्या होने वाला है, थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज। सब कॉम्प्रोमाइज पूरा नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी इस मोमेंट पे क्या कॉम्प्रोमाइज होना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप यहाँ पे बैठे हो तो यू आर नॉट अलाउड टू यूज फोन, तो कोई आपका वेट कर रहा होगा कॉल का, मैसेज का, तो आपकी पर्सनल लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी वहां पे। लेकिन जहां पे कॉम्प्रोमाइज हो रही है उसको अक्कल होनी चाहिए ना कि यहाँ पे बैठ के हम लोग स्टैंड अप इंडिया तो नहीं देख रहे ना, कॉमेडी तो नहीं देख रहे ना, क्रिकेट के मैच तो नहीं देख रहे ना, हम यहाँ पे बैठ के अपने आप को बना रहे हैं। तो ये ज्यादा जरूरी है चैटिंग करने से, ये ज्यादा जरूरी है फोन पे बात करने से। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो आपके डिसीजंस की एक्यूरेसी लेवल बढ़नी चाहिए, एग्जाम में भी और प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में भी। और ये भी कैसे बढ़ाई जाती है कि आप स्पीड में करोगे, सही करोगे। ये कैसे किया जाता है? कैसे अचीव करोगे आप एक्यूरेसी? कैसे अचीव करोगे लाइफ में? साहब आप बैलेंस शीट बनाओगे, फास्ट बनाओगे, लेकिन सही भी बनना चाहिए। कैसे करोगे आप? इसका भी आंसर वही है। क्या? प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। कि स्पीड तो बढ़ा ही दी आपने, अब एक्यूरेसी भी बढ़नी है, लेकिन इमीडिएटली बढ़ेगी क्या? नहीं, कभी कभी आप स्पीड बढ़ाने जाओगे गलत होगी, फिर कभी तो करोगे फिर गलत होगी, फिर करोगे फिर गलत होगी, लेकिन एक दिन तो सही शॉट लग ही जाएगा ना रे। एक दिन तो स्पीड तो ऑलरेडी आ चुकी है आपके पास। अभी अभी आपको क्या बढ़ाना है? एक्यूरेसी। जितनी बार रिपीट करोगे उतनी बार सेम सवाल 10 बार सॉल्व करो। पहली बार करोगे बहुत टाइम लगेगा, दूसरी बार करोगे तो कम टाइम लगेगा, तीसरी बार और कम, चौथी बार और कम, 10वीं बार जब करोगे तब तक तो पता होगा ना कि कौन से नंबर पे टैली होता है। आपको देखना भी नहीं है मॉड्यूल खोल के कि ये नंबर राइट है कि रॉन्ग है। तो आप लोगों का एग्जाम में टाइम क्यों लगता है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? क्योंकि आपने सेम सवाल 10 बार सॉल्व किया ही नहीं। जिम जाने वाले लोग हैं अभी हमारे सामने, अगर आप हर सेट एक एक बार मारोगे तो बॉडी बन जाएगी? मारो ना, जितने भी जिम में इक्विपमेंट है एक ही बार मारने का, सेकेंड टाइम रिपीट नहीं करने का, चलेगा? नहीं, वहां पे आपको अक्कल है। क्या अक्कल है? कि नहीं, अगर मेरा फोर आर्म्स बनाना है तो मुझे डंबल्स उठाने पड़ेंगे, मिनिमम 3 सेट मारने पड़ेंगे, और 3 सेट में मिनिमम 20-20 के रिपीटेशन मारने पड़ेंगे। मतलब सादा एक बॉडी का मसल बनाने के लिए तुझको पता है, मुझको और एक ही दिन करना पड़ेगा ये? नहीं, ये कब करना पड़ेगा? रोज रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। तो जब फिजिकल बॉडी है उसका एक कंपोनेंट बनाने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है, तुझको जब पता है, तो ब्रेन की जो सेल्स है अंदर, न्यूरॉन्स जो आपको दिखते भी नहीं है, उसको पावरफुल बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। इजी क्या है बताओ? बॉडी को ट्रेन करना इजी है कि माइंड को ट्रेन करना इजी है? माइंड को ट्रेन करना इजी है, बॉडी को ट्रेन करना इजी है। माइंड को ट्रेन करना बहुत चैलेंजिंग है,
क्योंकि माइंड आप लोगों का ऑलरेडी सड़ चुका है। सड़े हुए माइंड को अच्छे पहले न्यूट्रल साफ करके न्यूट्रल बनाना पड़ता है और फिर उसको ट्रेन करना पड़ता है। आपको अभी तक पता ही नहीं कि आप में ताकत कितनी है। अच्छा मुझे बताओ, मैं हमेशा पूछता हूं आपको, इंसान तेज भागता है कि चीता? साइंटिफिकली पूछ रहा हूं। हाँ, साइंटिफिकली कौन तेज भागता है? चीता भागता है, लेपर्ड ना, चीता भागता है तेज। लेकिन जब चीता इंसान के पीछे भाग रहा है तो कौन तेज भागेगा? आप चले जंगल में चले गए, घूमने चले गए थे, हाँ, मस्त में आपको सामने चीता दिखा, अब क्या करोगे? नहीं नहीं, आराम करेंगे ना। आपको तो पता ही है, साइंटिफिक साइंस तो आपने भी पढ़ के रखा है कि चीता की स्पीड आपसे ज्यादा है, भाग के क्या ही कर लेंगे। चीता पकड़ ही लेगा आपको, इसलिए आप सरेंडर करोगे कि भागोगे? चांसेस बहुत कम है लेकिन आपके सर्वाइव होने के, फिर भी भागोगे ना। प्रोफेशनल लाइफ भी वैसे ही है दोस्तों, बहुत कम चांसेस है आपके प्रोफेशनल बनने के। लेकिन जिंदगी नाम का चीता आपके पीछे भागना ऑलरेडी चालू है, आपको खाली दिखा नहीं अब तक, क्योंकि आप कभी पीछे मुड़ के देखते ही नहीं हो, आप अपनी ही धुन में हो। चीता आपको देख रहा है, आपने खाली चीता नहीं देखा, इसलिए आप भाग नहीं रहे हो। मैंने वो चीता देखा है जीता जागता, मुझे पता है चीता कैसे भाग रहा है मेरे पीछे, इसलिए मैं आपसे थोड़ा तेज हूं। नहीं तो तुम और मुझ में फर्क इतना ही है, मैं थोड़ा ज्यादा सीरियस हूं और आप बिल्कुल नहीं। और ऐसा ये आप रिकॉर्डेड लाइन पे सुनने वाले बच्चा, आप लोगों के साथ भी वैसा ही है। अभी भी अगर सोफे पे तुम अजगर बन के अगर ये लेक्चर देख रहे हो ना, तो शर्म आनी चाहिए आपको। तो 5 साल बाद, आज के 5 साल के बाद आपको सेम रहना है कि बदला हुआ इंसान मिलना चाहिए? आपको बदला हुआ इंसान बनना चाहिए। और बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेंगे? रोज डिसीजंस लेने पड़ेंगे। सही डिसीजंस लोगे कि गलत डिसीजंस लेंगे? सही। और सही डिसीजन लेने के लिए पहले गलत तो लेने पड़ेंगे। अनुभव तो आना चाहिए, और अनुभव आने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिसीजंस तो लेने चालू करने पड़ेंगे, एक्शन तो लेना करना पड़ेगा ना। रिजल्ट तो बाद में आएगा, पहले तो एग्जाम देनी पड़ेगी, और परीक्षा देने से पहले प्रिपरेशन करना पड़ेगा। बिना प्रिपेयर किए एग्जाम दोगे तो रिजल्ट पहले से ही पता है, रिजल्ट का वेट करने की क्या जरूरत है? फिर आपको पहले प्रिपेयर हो जाओ और फिर परीक्षा दो। फिर एटलीस्ट चांसेस है दो चीजों के, क्या? पास या फेल। विदाउट प्रिपरेशन बाय डिफॉल्ट फेल, जो अब तक की जिंदगी में आप बहुत बार करते आए हो। विद प्रिपरेशन देयर इज अ गुड चांसेस ऑफ पासिंग, देन टेक दैट चांस। नो, एग्जाम को चीता समझ के समझो, आपको पार करना है। और आई एम टेलिंग यू, अगर आपको चीता देख के अगर आपने भागा, तो साइंस आपने पढ़ा है, चीता ने नहीं। ये जिंदगी का सच है। चीता को नहीं पता चीता आपसे तेज भाग सकता है कि नहीं। आपको भागते हुए देख के चीता गिव अप कर देता है कि जाने दे यार, छोड़, दूसरे को पकड़ लेता हूं जो नहीं भाग रहा है, क्योंकि उसके बाद ऑप्शन बहुत है ना। तुम 10 के झुंड में हो, 10 में के 9 लोग भाग गए, चीता किसको खाएगा? सबसे जो तेज भाग रहा है उसको? नहीं, ये सबसे स्लो भाग रहा है उसको, या जो भाग ही नहीं रहा है। चीता भी क्यों मेहनत करे? उसको अक्कल है। तो जिंदगी का चीता तुम लोगों के पीछे पड़ चुका है, ऑलरेडी है, सबका रहता है, पैदा होते ही हो जाता है। भागना तो आपने अब तक सीख लेना चाहिए था, नहीं सीखा, अभी सीख लो। जितना तेज भागोगे उतना आगे निकलोगे, उतना ज्यादा सक्सेसफुल रहोगे। नहीं तो ये जिंदगी नाम का चीता जिस दिन दबोच लेगा ना, उसके बाद नहीं भाग पाता इंसान। वो निकलने वाला उसमें से भी निकलता है, लेकिन उसके चांसेस और कम हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो बर्डन पे आ चुका है। तो आपके सर के ऊपर आज, आप मैरिड नहीं हो, आपके ऊपर सब बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपके ऊपर माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको अभी ईएमआई नहीं भरने, तो अभी आपको जिंदगी नाम की चीते ने अभी तक पकड़ा नहीं है, ठीक है ना। तो आप कम ताकत लगा के भी अच्छे से भाग सकते हो। आगे जाके जब जब मेरे एज पे आ जाओगे, तो आपको ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। भागना तो तभी भी है, क्योंकि भागना बंद तो खत्म, गेम ओवर। और फिर मेरे भी आगे कुछ लोग होंगे, महताब सर है, उनकी कंपनी और बड़ी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बड़ी है, और फिर और बड़ी कंपनीज होंगी, और बड़ी होंगी, और बड़ी होंगी। फिर रिलायंस भी है कि इतनी बड़ी कंपनी है, तो उनके पीछे कितना बड़ा चीता पड़ा होगा। और फिर देश है, उनको कितना बड़ा टेंशन आता रहेगा, उनके लोन्स कितने बड़े बड़े हैं। तो भैया गेम, सब लोग गेम में है,
गेम सिंपल है, रोज उठो और रोज काम करो, रोज प्रैक्टिस करो, क्योंकि एक ना एक दिन तो सक्सेस आई ना ही है, क्योंकि आप गेम में हो। आपने गेम छोड़ दिया तो सक्सेस की तो बात ही मत करो। तो आपको लाइफ में करना ही क्या है, प्रैक्टिस करनी है तो स्पीड बढ़ेगी, प्रैक्टिस करनी है तो एक्यूरेसी बढ़ेगी। जब इन दोनों को बैलेंस करना सीख जाओगे जिंदगी में, एक चीज के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो, क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, क्वालिटी ऑफ योर थॉट, द पर्सनालिटी दैट यू हैव। आपको ओरिजिनल रहना है, किसी को कॉपी नहीं करना है, मतलब खुश रहना है ना। आंसर देख के आपने क्वेश्चन सॉल्व किया एग्जाम में, आंसर देख के आपको ही रिग्रेट हो रहा है कि क्या ही लिखा है मैंने, कैसे इसको मार्क्स मिलेंगे। अच्छा आंसर है, बहुत स्पीड से भी लिखा है, राइट भी लिखा है, लेकिन आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आपकी हैंड राइटिंग देख के वो पढ़ने का आपको खुद को मन नहीं कर रहा है, तो कैसे आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा? देगा क्या? नहीं। तो आपका प्रेजेंटेशन लाइफ में भी और एग्जाम में भी दोनों इंप्रूव होना चाहिए। प्रेजेंटेशन भी कैसे बढ़ाया जाता है बताओ ना, पहली चपाती कभी गोल नहीं बनती, तो प्रैक्टिस करके। मतलब मैं आपको, आपके गोल अलग अलग है, किसी को स्पीड अचीव करनी है, किसी को एक्यूरेसी अचीव करनी है, किसी को प्रेजेंटेशन, किसी को तीनों, लेकिन करना सबको एक ही चीज है, रोज उठना है और प्रैक्टिस करनी है। तो ये आउटकम जो आता है वो प्रैक्टिस से आता है, ट्रिपल पी से आता है। तो एक बार प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड बढ़ेगी, और एक बार प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड के साथ एक्यूरेसी बढ़ेगी, और एक बार प्रैक्टिस करोगे तो प्रेजेंटेशन भी बढ़ेगा। और उसके बाद मैंने आपको बोला कि आपको 3 बार नहीं 5 बार प्रैक्टिस करनी है जो आपने सीखा है। तो मैं तो 2 एक्स्ट्रा जाके कर रहा हूं ना आपको, वैसे तो R3 काफी था आपके लिए, लेकिन मुझे पता है कि R3 पे भी नहीं होता कभी कभी, तो कभी कभी 2 बार और करना पड़ता है कंफर्म करने के लिए कि स्पीड, एक्यूरेसी और प्रेजेंटेशन बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। इसलिए 5 रिवीजन करने जरूरी है। मतलब हर सवाल आपको कितनी बार सॉल्व करना है। आप चाहते हो ना एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए आपको, आपको अगर एग्जाम में गारंटेड 60+ चाहिए ना, तो किताब में लिखा हुआ हर सवाल आपको कितनी बार सॉल्व करना है? 5 बार। लकीली यू माइट बी द ऑल इंडिया रैंकर ऑल्सो, AIR 1 बन सकते हो अगर आपने हर सवाल को कितनी बार सॉल्व किया है? 5 बार सॉल्व किया। दैट्स ऑल। सक्सेस का एकदम सिंपल फॉर्मूला, लाइफ हो या एग्जाम हो, सैप, स्पीड, एक्यूरेसी एंड प्रेजेंटेशन। और इन तीनों को अचीव करने का एक ही तरीका, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस करने से पहले रोज सुबह उठ के लिया गया डिसीजन कि मुझे करना ही क्या है लाइफ में, क्योंकि जो करना है उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। मुझे टीचर बनना है और मैं बैडमिंटन का प्रैक्टिस करूंगा तो आई विल नेवर बिकम अ गुड टीचर। तो मुझे अच्छा टीचर बनना है तो मुझे रोज पढ़ाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, जिम भी जाना उतना ही जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि टीचर अगर अदरक के शेप का होगा तो लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि किधर से भी बाहर निकला हुआ है। पर्सनालिटी होनी चाहिए ना, प्रेजेंटेशन भी होना चाहिए ना। तो मेरा पी में प्रेजेंटेशन में मेरी बॉडी भी आती है, मेरे कपड़े भी आते हैं। मैं आज टी शर्ट पहन के ही आने का सोच रहा था, लेकिन फिर बोला नहीं 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 नहीं, पहला दिन है, आज अपन क्या करके आते, कुर्ता पहन के जाते हैं, क्योंकि अपना वो पर्सनालिटी है, अपने को अच्छा लगता है कुर्ता पहनना, इंडियन कल्चर है, हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। सूट भी पहन सकता था, नहीं पहना, ठीक है, जरूरत नहीं है सूट पहनने की, उतना रेडी होने की जरूरत नहीं है, कुर्ता तो रेगुलर है। तो हर चीज को, अच्छा मैं जो बोल रहा हूँ कुर्ता पहन लिया, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसमें ताकत ही नहीं है, एकदम सेंटेंस की क्वालिटी ही नहीं है कुछ, तो क्या ही मतलब है अच्छे कपड़े पहन के। और जो बोल रहा हूँ बहुत स्लो बोल रहा हूँ, एफिशिएंसी नहीं है, तो चलेगा क्या? नहीं। तो हमारा एजेंडा क्लियर है कि हमें कल से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। क्यों करनी? क्योंकि हमको क्या बढ़ाना है, स्पीड बढ़ानी है। किसकी? थॉट्स की। फिर थॉट्स की स्पीड बढ़ा, लेकिन इनकरेक्ट डिसीजंस लेने की करेक्ट लेने, एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये दोनों करते करते क्या नहीं कॉम्प्रोमाइज करना है, प्रेजेंटेशन। तो हमारे पास तीनों चीजें आनी चाहिए, तो तीनों चीजों के लिए हमें करनी एक ही चीज है, प्रैक्टिस। तो आई होप यू पीपल विल बी मोर सीरियस। आज आप लेट आए थे थोड़े, कल आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग बिफोर द टाइम आओ, तो हम लोग मेडिटेशन से चालू करें। आज सेशन डायरेक्टली सेशन से स्टार्ट हुआ। आई वांट टू स्टार्ट अ सेशन विद मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन एक ग्राउंड बनाता है, पर्सनालिटी को क्लीन करता है, और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एक्चुअल सेशन।
एकेडमिक नॉलेज के पहले स्पिरिचुअल नॉलेज, क्योंकि हमारे 5 गोल हैं। हमें हेल्दी बनना है, उसके लिए आपको जिम जाने मैंने बोला हर सुबह। हमें वेल्दी बनना है, उसके लिए दिन भर हम काम करेंगे। हमें लविंग बनना है, मतलब हमें केयरिंग बनना है। लविंग एंड केयरिंग इज द सेम वर्ड, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो लव एंड केयर में मतलब आपके आजू बाजू में जो भी लोग हैं उनका ख्याल रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सब करते करते आपको स्ट्रेस आना चाहिए क्या? यार क्या क्या करना पड़ रहा है जिंदगी में? नहीं। तो आपको क्या बनना है? ब्लिसफुल भी बनना है, खुश रहना है। मतलब जो भी करो खुशी से करो। इनकम टैक्स का लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? खुशी होनी चाहिए कि मैं कुछ तो अच्छा कर रहा हूं। समाज में और भी लोग हैं, वो लोग ये नहीं कर रहे जो आप कर रहे हो, तो यू शुड बी हैप्पी, यू शुड फील लकी, यू शुड फील दैट योर लाइफ इज हैविंग सम वर्थ, सम पर्पस। तो आपको खुश रहना है लाइफ में। और ये 4 करते 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 एक दिन आपको स्पिरिचुअल बनना है। आई डोंट वांट यू टू बी वेरी मच स्पिरिचुअल एट बिगिनिंग, नहीं तो आप लोग हिमालय वगैरह ना चली जाना चालू करो। बट डोंट लूज स्पिरिचुअलिटी, उसको भी साथ में लेके चलो। तो हमारे एकदम सिंपल से गोल है, हेल्थ, वेल्थ, लविंग, ब्लिसफुल एंड स्पिरिचुअल, जो महात्रिया ने हमको बताया, जो एक ह्यूमन में होने चाहिए। और हम सारे हैं तो हमको हमारे में भी वो होना चाहिए। ठीक है ना? चलो, तो इनकम टैक्स हम कल से पढ़ना चालू करेंगे। आई एक्सप्लेन यू द होल सिलेबस के होता कैसे। और आई होप कि आप लोगों के नोटबुक में मैं पहले पेज पे क्या देखूंगा कल? एक नई नोटबुक देखूंगा जिसमें क्या बना हुआ है? इंडेक्स बना हुआ है। कैसे? ऐसे सीरियल नंबर, टॉपिक, क्लासरूम, जिस दिन आप करोगे उस दिन की तारीख उसमें होनी चाहिए। उसके आगे क्या आपने उसके नोट्स कंप्लीट किए हैं, और उसके आगे फिर जब ये सब हो जाएगा तो जिंदगी में एक बार तो बैठ के वो कोई तो एक बुक पढ़नी पड़ेगी, मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा। क्या आपने मॉड्यूल पढ़ के खत्म किया है? और एक बार इतना होने के बाद मेरे हिसाब से प्रिपरेशन खत्म हो जाता है। फिर प्रिपरेशन खत्म होने के बाद हमें क्या करना पड़ता है? उसको ही, उसकी ही प्रैक्टिस करनी होती है ना। एक बार प्रिपरेशन कर लिया है, अभी उसका क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा 15-15 दिन के या 20-20 दिन के इंटरवल में। ठीक है ना? ऐसे कितने रिवीजन करने पड़ेंगे? 5। और उसके बाद क्या करेंगे? उसका एग्जाम। और एग्जाम में अगर अच्छा स्कोर आया तो क्या समझने का? हो गया है। नहीं हुआ तो क्या करना पड़ेगा? फिर से 0 पे आना पड़ेगा। तो या तो आपने सीखा गलत होगा या तो आपके नोट्स गलत होंगे, क्योंकि अगर ओरिजिन ही गलत होगा तो रिवीजन भी गलत होगा। तो आपको फिर से सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 50 क्रॉस कर रहे हो, 60 क्रॉस कर रहे हो, तो हमारा गोल अचीव हो चुका है। यू नो द टॉपिक। ठीक है? और ये सब करने करके हमको क्या अचीव करना है? तो सैप अचीव करना है, स्पीड, एक्यूरेसी एंड प्रेजेंटेशन। इतना ही मैंने आज आपके लिए बोला। ओके, थैंक यू।